मैंने ऑडी खरीदी है, मुझे मालूम है 2012 में 50 लाख रुपए खर्च करके खरीदी है। रेड कस्टमाइज्ड ब्लैक इंटीरियर्स, दिल्ली वाली हरकतें मैंने पूरी दिल्ली की है। वाली मैं तो तो कह ही रहा बोले हूँ। रेड वहीं से आता है। हाँ, रेड विद ब्लैक कस्टमाइज्ड इंटीरियर, मैंने इंटीरियर्स करवाने के लिए चंडीगढ़ भेजी थी गाड़ी। तो मैंने Absolutely. हरकतें की है, मैं तो कह ही नहीं रहा। अभी बड़े सालों के बाद मैंने खोजा अपने अंदर कि पहले एक्टिंग करनी थी सिर्फ फेमस होने के लिए। एक्टिंग करेंगे, स्टार बनेंगे, फेमस होंगे। अब एक्टिंग करनी है क्योंकि एक्टिंग करने में मजा आता है। बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। शायद धागे भर का ही होगा, लेकिन वो फर्क मैंने महसूस किया। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक्टिंग करूँ या किसी नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट में करूँ या किसी बहुत बड़ी फिल्म में करूँ या रोड पे करूँ। आई लव इट बिकॉज व्हेन आई एम एक्टिंग आई एम इनटू माय ओन स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अरे नहीं, मत याद ही मत रखो मुझे, बस बहुत हो गया याद ही रखने। नहीं नहीं, खत्म हो गया है। हिमांशु जैसे बतेरे आएंगे, बतेरे चले जाएंगे। आई डोंट केयर अबाउट एनी टर्म कॉल्ड हिमांशु एंड आई डोंट वांट टू एनीमोर। मुझे याद है जब चीजें नहीं चलती थी तो मॉम कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जा रही है, कभी ये पहना रही है। दैट मोमेंट व्हेन माय डैड्स डिमाइज हैपेंड एंड समथिंग गॉट अवेकन्ड एंड आई वाज लाइक सब खत्म। और तैयारी करने के बाद अपने कोकून में भी नहीं अटकना होता है। तैयारी करने के बाद बड़े अभी कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट? एक मैंने बहुत अच्छी फिल्म वेलकम टू बियॉन्ड बिलिबल्स हिमांशु। मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली से हैं। तो ये बॉम्बे आने का डिसीजन कैसे हुआ? बॉम्बे आने का डिसीजन एक्चुअली मेरा तो था ही नहीं अपना। आई थिंक अपने आप ही हो गया predominantly. आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द कॉन्टेस्ट कॉल्ड जी सिने स्टार्स एंड ऑल इंडिया Zee Cine टैलेंट हंट Stars. in 2004. That happened and I was modeling back in Delhi at that point of time. And because I was modeling, then Z approached some models and theater artists. And there was a pilot episode they were creating back in Delhi. I auditioned for it and I won it from there. Then they brought me from Delhi to Mumbai. अगर वो नहीं लाते तो मैं यहाँ पे नहीं होता. So all thanks to ZTV for conducting that television show, that talent hunt, because of which I'm here sitting in the city since 2 decades now. वाह। एंड बिफोर दिस अपॉर्चुनिटी केम, उससे पहले क्या चल रहा था आपकी लाइफ में? I was a cricketer back then. वाह। Yeah, I played under 19s and everything, and a few of my friends, like Gautam, was in Hindu college. We were together. I was a senior actually, and he played. Of course, Gautam is heading Of course. Indian team now. Of course. Deep Bhaiya was there. Deep Das Gupta was my senior. Akash Wow. Chopra. Akash Bhaiya was also the senior, but he had already played Ranji Trophy and everything. So I was a professional cricketer. Played for almost 10, 12 years, right from my early childhood days and everything. And never thought of becoming an actor, never wanted to. Just wanted to play for the country, being a sportsman. But I think life has its own way of turns and twists, and it just happened. Once cricket got dropped from life, How did that happen? If you can tell me, Himanshu. cricket You said got you're a dropped. professional cricketer. Yeah. Cricket got dropped because nothing was happening. Probably now I look back, there was a major issue that I felt, which I realized while reading books over a period of time. Couldn't understand then, was fear. Fear was encapsulating at that point of time. There was a fear of failure. So I used to bat very, very well in nets, but in matches there wasn't much happening. Sometimes it was happening, sometimes it wasn't happening. I was playing from Sonnet Cricket Club, where Akash Chopra, Ashish Nehra, all these players have been playing for India. Even Mithun Manas, Mithun Bhaiya is, I think he's heading BCCI probably right now, from Delhi only. So yeah, I think it's the fear that got encapsulated, and I couldn't understand because there was a pressure that I put upon myself post my school. I think Dad had said you have 3 years, and if you can make it, fantastic. If you can't, then you will have to leave cricket. I think that kind of pressure, I just took it upon myself so much that every match I have to perform it. If I don't perform, then this will happen, that will happen. I won't be able to become, and I have to leave cricket, then I have to do my business and all those things. But unfortunately, and eventually, it happened only, which I It came only true. kept creating. It came true. It came true only, and then unfortunately, I couldn't become a cricketer. Final year of college, Hindu college. Then I decided, and it got automatically dropped, and because things were not happening, and Dad said, just do MBA, and you've been very good at studies, and do that. So I started pursuing MBA and a bit of modeling, and then Z Cine Stars happened, and just somehow I think
God wanted me to be in the city, and I had done a bit of debates and speeches and performances back in school, Back in school. but never thought that I would want to become an actor. I think it was in the hindsight that I look back, I feel I may have wanted to, but I didn't know. That this is acting that I want to go for. I think I wanted to be famous. Let's be very honest about that. And I was very clear about it that by doing my dad's business back in Delhi, I won't be famous. You'll be famous in a different circle. हाँ मतलब वो जो आपकी इच्छाएं और तमन्नाएं ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी होती हैं ना बिकॉज यू सी इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज हम लोगों ने वही देखा था और मे बी either you see Indian cricket team or you see the biggest stars of Bollywood. These are the Yeah. only two genres Yeah. where we feel that we can just make a mark. And I think that's what actually happened. And so जब cricket नहीं हुआ तो मुझे लगता है फिर अपने आप ही the television and the film started to happen, which I didn't plan. Of course, a bit of modeling and training and all these things were happening, but I didn't know that I'll ever be able to transcend to Mumbai. And then I think I always feel that you keep your head down and keep prepping, and then God, Absolutely. it's like the grace of the universe that just just God puts favors. His hand, God favors you. And then the Cinestar contest happened, and I won it from there. They brought me from Mumbai, from Delhi to Mumbai, and yeah, the journey changed completely, but yeah. फिनोमिनल है हिमांशु. मैं एक डाइग्रेशन कर रहा हूँ विच इज़ यू मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट कि मुझे फेमस होना था. नाउ डेज लोग फेम को लेके दो व्यूज़ में बोलते हैं. फेम इज़ नेगेटिव. कुछ लोग बोलते हैं कि फेम इज़ वेरी सुपरफिशियल. पहले तो आप मुझे इस पर बताना आपका व्यू क्या है. बट उससे पहले हाउ डिड यू नो बैक देन कि मुझे फेमस होना है. उस टाइम आपने क्या देखा ऐसा, क्या फील किया? यार मुझे ऐसा लगता है कुछ देखा तो मुझे अभी भी याद नहीं बट इतना बड़ी अजीब सी और स्टूपिड सी बात है बट मुझे अभी थोड़ी बहुत याद भी है और शायद काफ़ी समय से याद है नहीं, बहुत अच्छी बात होगी, आप बताओ. हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में ही ना when I was very young I had this stupidest thing that that मरने के बाद लोग याद रखें मरने के बाद लोग याद रखें लोग याद रखें. मतलब लाइक काइंड ऑफ लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड. लीविंग अ ये लेगेसी. कहाँ से आती है मैं आज तक इसको ढूंढ नहीं पाया हूँ अपने अंदर से क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से आई मैंने क्या देख लिया मुझे याद भी नहीं है. मैंने किसी को सुन लिया. आई डोंट नो what was that. I still haven't been able to. I've been contemplating so many years about this but I could not understand although and it kept driving me and I would be very honest if I say it still drives me though of course उसके बहुत सारे अंश मैंने छोड़ दिए हैं because I realized then this is just an idea that you are projecting in your head. But yeah, उसके कुछ रेजिड्यूज अभी भी छूटे हुए हैं. ऑफ कोर्स काफ़ी सारे डिलीट हो गए बट आई थिंक बहुत सारे साल उसने ड्राइव किया मुझे. और वो कहाँ से आता मुझे आज तक नहीं पता. वो डेफिनेटली घर से नहीं आता. वो डेफिनेटली स्कूल से नहीं आता क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक when I was in third standard I must have been like 8 or 9 around that only. Yeah, 8 or 9. So I'm talking about 30 years back or more than that slightly. So I don't know ये कहाँ से आता और And उस टाइम फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं मॉडेस्ट फैमिली बैकड्रॉप. nobody was कुछ कि भी नहीं. हाँ मेरा बेटा बॉलीवुड स्टार बन. नहीं किसी का कुछ था ही नहीं. Dad was into business and he never thought I never thought that I would want to become a Bollywood star or something. He was like कि बिजनेस करेंगे मतलब दोनों बेटे हैं घर के और दोनों के बीच में 4 साल का डिफरेंस है तो दोनों अच्छा तो घर में टाटास बिरलास अंबानीस की बहुत सारी बातें बहुत होती सारी थी बातें होती. कि उन्होंने ये कर दिया आज ये हो गया आज वो हो गया. बिजनेस के सारे प्रोस्थेटिक्स सारे होते हैं डायनामिक्स एंड आई डिडंट नो मच अबाउट इट. आई वाज नेवर इंटरेस्टेड समहाउ बिकॉज आई हैड ऑलरेडी चोजन माई पाथ ऑफ बिकमिंग. जब तक मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने क्रिकेट तो चूज कर ही लिया था एंड आई वांटेड टू डिवोट माई लाइफ टू इट. फिर क्रिकेट नहीं हुआ देन आर्ट स्टार्टेड टू हैपन बट वो वहीं से शुरू हो गया फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड एंड देन इट टुक मी ऑन अ राइड. So I'm also trying to find where it did come from. And फिर वो अब उसमें वो बात फिर वो फेम की इतनी स्ट्रांगली उसमें उसी में लेगेसी भी आ जाती है उसमें आपकी ग्रेटनेस भी आ जाती है सब आ जाती है. सब आ जाती है. हाँ सो तो वो आई थिंक इट केप्ट ड्राइविंग मी. Though now at this moment as I speak I realize that it's a false projection of the mind and it just drives you. Maybe in the initial years, maybe the destiny wants you to go through a certain path and it's like you go through certain things to go beyond them. Well said.
तो पहले Can उससे you say that once again? हाँ, दैट यू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ टू गो बियॉन्ड देम, Wow. कि पहले उनसे गुजरना ज़रूरी है तभी आप उसके परे जा सकते हो। जैसे घर गाड़ी बंगला सब खरीदना ज़रूरी है तभी आप उसके परे जा सकते हो, वरना वो जो उसकी जो डिज़ायर है ना वो डीप रूटेड रह जाती है, आप उसको सप्रेस कर देते हो, फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे अपना like a snake, it just bring its fangs on and then you again got stuck. So I don't believe in any kind of suppression. I feel एक बारी शायद वो डेस्टिनी भी वैसी थी कि पहले वो शायद उसी वजह से इतनी जेस्ट और इतनी ड्राइव ने इतने साल मुझे 4 Kept बजे on 5 going. बजे उठाया है। मैंने ट्रेनिंग्स की हैं, सारी ट्रेनिंग्स की हैं, बट इट्स Wow. एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, ये वो सारी चीज़ें शायद उसी जेस्ट की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो फिर वो धीरे धीरे डिजॉल्व भी होने शुरू हो जाती है, बिकॉज देन यू स्टार्ट सीइंग द एम्प्टीनेस ऑफ इट। Emptiness. बट पहले तो आपको वो रेत You के have to अंदर तो go through it. हाँ, पहले तो आपको रेत के अंदर जो पानी गिर रहा होता है वो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको ऐसा लगता है कोई हीरा ही है ना, तो पहले तो वहाँ तक तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार एक्चुअली वो बस धूप की वजह से चमकता हुआ हीरा दिख रहा था, बट एक्चुअली कुछ नहीं है। बट पहले तो जाना ज़रूरी है, तो जाओ, मैं तो हर किसी को कहता हूँ पहले जाओ, देखो, देखना ज़रूरी है, पहले से तय करना नहीं। Wow. This reminds me, in one of his speeches, Jim Carrey, जिम कैरी, he said it that I want everybody in the world to make all the money, be famous, be very rich, only to realize that that's not the end of it. I second that. I second that, completely what he said, because I think I've followed some of his interviews pre and post as well. When he used to carry the check of Of $10 $10 million. and then over a period of time when he dissolved everything and started becoming a painter and started painting, and all his videos about the power of now and the present moment and all those things. And only once you go through it, then you can go beyond it. ये तो होगा ही। Go through it to go beyond it. Wow. So coming back, when you made that switch to Bombay, आप उस टाइम फैमिली क्या कह रही थी कि हिमांशु नहीं, no, who's going to be in our business? Yeah, I know. Dad का तो शुरू से था कि he wanted me to do business, but I think मुझे लगता है इतने समझदार तो वो थे, उनको समझ में आ गया होगा कि ये नहीं कर पाएगा बिजनेस, इसके बस की बात नहीं है। इसलिए भी क्योंकि मैंने कभी इंटरेस्ट भी नहीं था और उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा और उनको लगा ये अलग ही दिशा में जा रहा है। तो आई थिंक पेरेंट्स भी काफ़ी समझदार होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो समझते नहीं हैं, बट ही ऑल्सो रियलाइज थी कि चीज़ें शायद वर्क नहीं कर रही हैं। एंड देन ही सेड कि बिजनेस करना, बट ही ऑल्सो टोल्ड मी, आई रिमेंबर जब क्रिकेट छोड़ा था, ही सेड तू MBA कर, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा तो तू डायरेक्टली बिजनेस में ज्वाइन कर, तू पहले MBA कर फिर देखेंगे क्या होता। और बाई चांस की बात है, आई स्टार्टेड डूइंग माई MBA, आई सैट फॉर कैट एंड एवरीथिंग। मेरा फिर से वो जो स्कूल में जो थोड़ा बहुत थिएट्रिक्स ड्रामेटिक्स था वो फिर से वो एक्टिवेट MBA में हो गया। मेरा। MBA में तो होता ही। Participating in dance and choreographies and acting and fashion and this and that. When that started to happen, फिर वो automatically I started training with Shamak and all those things happened, Barry Jones and everything. And then within an year, I remember my schedule for the whole year of MBA was like I will leave Delhi to Noida because Amity में कर रहा था मैं। सुबह 7 बजे, 8 साढ़े 8 बजे I will reach Amity, and then till 2 o'clock I'll make presentation, all those things. I'll have my lunch. I used to have my backpack, like those backpacks. Took my car, and then I will go first attend Barry Jones workshop for 3 hours, and then attend Shamak's workshop for 2 hours. Then I'll go to Ashley Lobo for 1 hour, and then another 30-40 minutes of martial arts. By 10:30 I used to come home. और ये सब हाँ, और ये रोज़ चला 1 साल तक। उस टाइम मज़ा तो आ रहा होगा एक। मज़ा तो बहुत आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। घर वालों को नहीं पता था ये सब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, nobody knew। All that money my sister used to pay for all those workshops because obviously we were not earning. So she used to help me out. कभी कभी झूठ झाट बोल के हम लोग पैसे इधर उधर मॉम डैड से लेके वर्कशॉप के पैसे यहाँ दे दिए वहाँ दे दिए, and all those things that used to happen. It went on for an year. और मुझे आज भी लगता है अगर मैंने वो तपस्या 1 साल नहीं की होती सर नीचे रख के, जबकि मुझे नहीं पता था कि मुझे बॉम्बे जाना भी कि नहीं जाना, तो शायद जब वो अपॉर्चुनिटी आती तो शायद थिंग्स वोंट हैव बीन, थिंग्स वोंट हैव हैपेंड। सो यस, वो प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी का भी एक जीवन है, जिसे हम किस्मत, भाग्य, लक कहते हैं, कि आपकी अपनी तैयारी भी तो हो। आप पहला कदम तो चलो, ईश्वर कहता है कि यार पहला कदम आप चलो, फिर मैं सब आपको दूंगा। लेकिन आप घर में बैठे रहोगे, आप इंतज़ार करोगे पहले सारे दरवाजे खुल जाएं,
लाइक वो इरफान सर बोलते हैं ना, वो मेट्रो फिल्म के अंदर कौन कौन और इरफान सर का एक सीन है बड़ा अच्छा, ही सेज कि जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तभी क्या गाड़ी निकालोगे, सो ही सेज टेक योर चांस बेबी, सो आई सेड टेक योर चांस, जस्ट कीप योर हेड डाउन and work and then wait for things to happen. It will, it's meant to. सभी के लिए होती है, मैं कोई अनोखा थोड़ा ना हूँ, हर कोई तैयारी करता है और ईश्वर फिर हाथ रख ही देता है, बिकॉज यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो उसका सीड बो दिया ना आपने, तो उसका आउटकम कब निकलेगा मुझे नहीं पता, बट आप करो सर नीचे रख के, सो आई थिंक बस आपने इंटेंट डाल दी, बस इससे ज़्यादा आपको कोई कर्म नहीं है, बस मुझे लगता है सबसे बड़ा कर्म ही इंटेंट है, बाकी तो उसके बाद तो जो ये ब्रह्मांड आपसे चाहेगा वो करवा ही लेता है मुझे लगता है, तो वो करवा लिया उसने, जी सिने स्टार्स करवाया, मुझे दिल्ली से मुंबई बुला लिया, और ये शहर, ग्रेटफुल टू द सिटी फॉर एक्सेप्टिंग मी, बहुत सारे मेरे दोस्त चले भी गए वापस उस कॉन्टेस्ट में से, गिने चुने कुछ बचे हैं, उनमें से मैं एक हूँ, सो ग्रेटफुल। एंड देन उसके बाद जब आपकी जर्नी शुरू हुई इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, टेलीविजन, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट? उसके बाद मल्टीपल वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, बिकॉज जैसे वो कॉन्टेस्ट ख़त्म हुआ वी वर ऑन आवर ओन, अब यहाँ से जर्नी शुरू हुई। आई रिमेंबर आई कॉल्ड माई डैड आफ्टर द कॉन्टेस्ट एंड ही सेड कि बेटा वहीं पर हो ना, वहीं पर कुछ करो। तो ये बड़ी बड़ी आज़ादी वाली बात मैं आपको कह रहा था ना, हम जब शुरू कर रहे थे कॉन्वर्सेशन, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वापस आ जाओ, जितना करना था कर लिया। और बड़ी अजीब सी बात है, मेरे डैड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम था हीरो होजरी। क्या नाम था उनका? हीरो होजरी। हीरो ओजरी। बिकॉज वी आर रेडीमेड गारमेंट्स, तो जब होजरी उन्होंने में 30 साल काम। पहले उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश किया था, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच समझ के हीरो नाम रखा था। HERO होजरी। होजरी इज ऑफ कोर्स फॉर Of रेडीमेड course. गारमेंट्स एंड एवरीथिंग। वी हैड ह्यूज स्टफ इन गांधीनगर व्हिच इज एशियाज बिगेस्ट मार्केट। तो आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है सारी कड़ियाँ तो जुड़ी हुई हैं, कि मुझे नहीं पता 30 साल पहले उन्होंने वही नाम क्यों रखा। And now we are able to connect the dots. Now we can connect the dots. Obviously, at that point of time, we can't. But looking backwards, we can. That his son is doing, Bollywood films and shows and reality in the superficial term of being a hero in the film fraternity. So yeah, so was Sari cheeze when I see. And then of course, coming back to your question, after the contest, of course, I realized that I need to train myself more, because this is a big city. Delhi was smaller in compared to film fraternity. Then the level of preparation needs to be higher, and of course in Delhi the level of preparation could not be much because the resources were less. The whole fraternity is here, so you have best training artists and all those things, and dance and music and singing and everything started, and it's still going on. It's been So एक चीज़, no, thanks for that sharing, Himanshu. एक चीज़, someone as an outsider, I call myself an outsider because I've been in Delhi, have had outside interaction from Bombay. तो मैं ये हमेशा से सुनते हूँ about your industry that there's a lot of struggle. Actors की लाइनें लगी रहती है for auditions. And you just mentioned preparation level is very high. तो first एक अगर मेरा myth है, अगर आप उसको break कर सको, कि is it true that the level of competition in acting today is very high? Is that a fair statement? आप क्या बोलोगे? यार पता नहीं मेरे को इसके बारे में, ना मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ना मैंने देखा है इतने साल, ना मैं इस शब्द में बिलीव है मेरा कोई कंपटीशन। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो जब सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मेरा किसी की जर्नी से कोई लेना देना ही नहीं है। आज से नहीं, जब से मैं क्रिकेट भी खेल रहा था तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपके 100 बन रहे, लेकिन आपके 100 बनने से मेरे को थोड़ा ना इंडियन टीम में सिलेक्शन मिल जाएगा, मुझे 100 बनाने हैं ना अपने, और मेरा आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। मेरी अपनी प्रैक्टिस है, अपनी बैटिंग है, अपना स्किल है, अपना टैलेंट है, अपनी यूनिकनेस है। तो कंपटीशन तो हमारा दिमाग का एक खेल है मुझे लगता है, क्योंकि हमने शायद इस दुनिया को एक रेस मान लिया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जितना मैंने महसूस किया, मुझे बहुत डीपली समझ में आया। सबसे पहली बात तो यह है कि वी आर ऑन अ रोटेटिंग प्लैनेट। जब हम गोल दुनिया के अंदर हैं तो कहीं पे भी भाग लो, कहीं पे भी चल लो, गोल गोल घूम के तो वापस आ ही जाओगे ना। जब अर्थ ही रोटेटिंग है एंड इट्स राउंड। मुझे तो समझ में नहीं आता है कंपटीशन, ये संघर्ष की जहाँ तक बात करते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है, बट दैट्स व्हाट वी चोज इन द फर्स्ट प्लेस। आई नेवर वांटेड टू डू अ रेगुलर 9 to 5 जॉब. I never wanted to do business, though of course business has its own ups and downs as well, but still some kind of security and stability is there.
I'm a freelancer as far as my profession is concerned. When money will come sometime, money will not come sometime. But of course, the rewards are also higher in comparatively. If we are slightly sensible, then we can just save that money. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. But even if the money doesn't come, I'm absolutely okay with that because I also realize I've also seen the emptiness of that also. Right? Because I've seen that even if you buy 6 crore house, it doesn't guarantee any kind of peace and happiness. I've had that as well. So I have realized that for me, all those things are there. They should be there. They are there for a certain period of time, but that doesn't guarantee anything. It has to be you. So as an artist, as somebody who's a creative being, I love being immersed in my art and enjoy that whole diving deep into it and letting myself flow and be free and be liberated at every aspect. So जब मैं ये महसूस कर लेता हूँ तो मुझ कंपटीशन, हाँ ब्लिस ही एक तरह का, तो कंपटीशन वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं है ना. मतलब वो क्रिएटिविटी है. अब इस लाइट को मैं अगर एज अ क्रिएटिव बीइंग किसी भी तरीके से देख सकता हूँ. राइट, इट्स अप टू मी हाउ आई सी. एंड एक संस्कृत में एक शास्त्रों में एक श्लोक है, जैसे कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसे हम दुनिया को देखते हैं दुनिया वैसी ही है. तो अगर ऐसा है और जो मैंने महसूस किया है ये वैसे है ना कि अगर हम इंटरनली ट्रस्टवर्दी हैं तो हम दुनिया को ऐसे देखते हैं कि लोग धोखा नहीं देंगे. हो सकता है कुछ लोग दे भी दें, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. गिने चुने 4-5-10%, लेकिन 90% लोग तो आपको अच्छा ही महसूस करवा रहे हैं ना. आप ट्रस्ट करो तो दे आर गिविंग द ट्रस्ट बैक. बट इफ़ आई एम सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग, then I'm starting my denominator from suspicion. Then I will start being suspicious about everyone. Then everyone will become suspicious. Then how will I live my life? So I don't want I start with 100% trust unless somebody chooses to deceive. And that's not even deceiving, I feel. It's okay. If somebody doesn't want. That doesn't do anything to me. It's their journey. It's their journey, absolutely. और उनके धोखा देने से मुझे क्या, वो धोखा तो मेरी अपनी परसेप्शन है ना, वो भी तो उनकी अपनी जर्नी, उनको चलने दो. मेरी अपनी जर्नी है. मेरी अपनी जर्नी में कुछ लेसन्स अभी भी लिखे होंगे मुझे सीखने. कुछ एक्सपेक्टेशंस अभी भी बाकी होंगी. कुछ चीज़ों का ढहना गिरना, अहंकार का ढहना गिरना, ईगो का ढहना गिरना बाकी होगा, तो ढह जाएगा. So perception is reality for us. हाँ, परसेप्शन इज़ रियलिटी है. शास्त्रों ने तो यही कहा है. और जितना मैंने संतों योगियों को सुना है, जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितना महसूस किया है, जितना खुद भी महसूस किया है, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है कि सब तमाशा चल रहा है. हाँ, ये तो तमाशा चल रहा है. तो जो चल रहा है उसे चलते रहने देते हैं. मैं उसके बीच में अड़ंगी नहीं करता. तो जो चल रहा है चलते रहने दो. जिसको जो करना है करते रहो. आप मौज में रहो. No, it's a very, very difficult attitude to have in your life, but if one is able to have it, I think life difficult नहीं रहती फिर. मुझे तो ये भी नहीं पता, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा. बस इतना है, ये आँख खुलने की देर है थोड़ी सी, कि मतलब वो. मैं आपसे पूछूंगा कि आपके केस में when did you open your eyes? यार वो अपने आप ही खुल जाते हैं. जैसे जैसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, अपने आप खुल जाते हैं. अगर तब भी ना खुलें तो फिर कब खुलेंगे, मुझे ऐसा लगता है. जैसे अचानक से मेरे डैड की मृत्यु हो गई ऑन माई बर्थडे 2 April 2013 when I was partying in Singapore in Marina Bay Sands. He was in Delhi, I was in Singapore, and it happened रात को 1 बजे 12 बजे उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया. सुबह 5 बजे was in there. तो मुझे लगता है अब भी नहीं खुलेगी. So sorry to hear that. It's all right, but I'm saying, खैर of course उसके बाद फिर my dad's name got merged into my name and it became I saw. Malhotra. From that moment itself I realized, and it was my birthday 2 April. So I realized कि यार अब भी मैं लाइफ को नहीं देखूंगा तो कब देखूंगा. मतलब इससे बड़ी घटना क्या होगी अगर अब भी आप अपनी आँख नहीं खोलना चाहते हो. So the nature and the universe is pushing us to open the eyes and obviously giving us the signpost and everything. अगर तब भी आपने आंखें बंद कर ली और उसके बाद फिर जीवन वैसे ही बिताया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ. फ़ायदा क्या? हाँ, मतलब मुझे लगता है एक बारी आँख खुल जाए तो खुल ही रहे. हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जीवन आपको वापस ले जाता है. भाग दौड़, हसल बसल एंड ऑल दोस थिंग्स विल एनकैप्सुलेट यू. बट आई थिंक दैट वाज द मोमेंट. आई रिमेंबर उससे पहले This is 2013. हाँ, This is 2013. उससे पहले मुझे वो भी था. मेरी मॉम जब जैसे उससे पहले फियर्स भी थे.
तो मुझे याद है जब चीज़ें नहीं चलती थी तो मॉम कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जा रही हैं, कभी ये पहना रही हैं. दैट मोमेंट व्हेन माय डैड्स डिमाइज हैपेंड एंड समथिंग गॉट अवेकन्ड एंड आई वाज लाइक सब खत्म, डन, डस्टेड विद. व्हेन लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन, ये सब अपनी अपनी सबकी मान्यताएं होंगी, लेकिन मेरे जीवन से ये इनका कोई लेना देना नहीं है. मुझे लगता है जो ईश्वर ने तय किया वही सर्वोपरि है और फिर उसी के हिसाब से चलेंगे. और मुझे अब लगता है कि बड़ा खूबसूरत है जीवन जो अनप्रेडिक्टेबल है. अगर मुझे रोज़ पता है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता. एज अ क्रिएटिव बीइंग तो डेफिनेटली नहीं कर सकते आप, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इस बात में कि मुझे पता ही नहीं कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है. So unpredictability is actually a positive word. It is absolutely. I don't know. The problem is, as human beings, because we are always in a controlled environment and safety and security, we want to control everything. So the mind essentially wants to control, and why it wants to control, because it's fearful. तो मैं डरपोक तो नहीं बनना चाहता लाइफ में यार. फिर चाहे धज्जियाँ जितनी मर्जी उड़ जाएं, फिर जितनी मर्जी मुझे तकलीफों से गुजरना क्यों ना पड़े, चाहे सब कुछ गवा दूं, लेकिन डर में जीना नहीं चाहता. क्योंकि मैंने डर में जी लिया ना, वो जब फियर था ना क्रिकेट का था. और मैंने देख लिया अपने ख्वाबों, ख्वाहिशों, तमन्नाओं को ढहते हुए बिकॉज ऑफ क्रिकेट. आई रियलाइज कुछ भी हो जाए. और उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था. ये फैसला आज का नहीं है. जिस दिन क्रिकेट छूटा था ना, मैंने बैट को साइड में रख दिया था. जब डैड ने कहा कि छोड़ दो, और मुझे लगा अब नहीं हो रहा है मानशो, आई हैव टू मेक पीस विद इट. मैंने बैट साइड में रखा, क्रिकेट किट साइड में रखी. मैंने कई साल तक हाथ भी ना लगाया, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ रिजेंटमेंट. नाउ आई रियलाइज इट. बट मैंने तय कर लिया था डर नहीं होगा बस ज़िंदगी में, अब कुछ भी हो जाए. तो जिसको आना है मोस्ट वेलकम, जिसको जाना है मोस्ट वेलकम. जो चीज़ आना चाहती है मोस्ट वेलकम, जो चीज़ जाना चाहती है मोस्ट वेलकम. बट डर नहीं हो सकता. हैविंग स्टिल सेड दैट कुछ रेजिड्यूज होंगे एज ह्यूमन बीइंग, बॉडी के अंदर हूँ. बट कोशिश तो यही रहती है कि जितना इससे परे हो पाए. बाकी देखते हैं, जर्नी लंबी है काफ़ी. हाँ, जिंदगी तो बहुत लंबी है. सो ऑल दोस थिंग्स. तो बैक इन द डे जब आप टेलीविजन की तरफ जा रहे थे, मूवीज की तरफ, डाइग्रेसिंग बिकॉज़ आई लव, मुझे भी नहीं पता मैं क्या शब्द निकलेंगे, क्या अल्फाज निकलेंगे. जैसे आपने बोला था मैं को क्वेश्चंस वगैरह पढ़ता भी नहीं. अच्छा, आप ना ही पढ़ो. मैं नहीं पढ़ता. इसने मुझे भेजे थे, मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूंगा. नहीं बिल्कुल. मैं कुछ पढ़ता भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उस लम्हे पे होगा ना वही सत्य है. प्रेजेंट मोमेंट. हाँ, क्योंकि उससे पहले क्या होगा ना, माइंड अगर पढ़ेगा तो वो पहले से कुछ ना कुछ अपनी उसकी चालाकी होती है बड़ी कमाल की. वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेगा. मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है. मैं एक्टिंग भी उससे मोमेंट में करता हूँ. जो होगा, जितना होगा इतना ही आता बस. अगर कोई मुझे कहता है आप बेहतरीन हो तो भी इतना ही आता है, कोई कहता है आप बेकार हो तो भी इतना ही आता है. बट जो उस लम्हे का सत्य है वो सबसे सर्वोपरि है. तो जब आप एक्टिंग करते हो, अगर हम एक्टिंग की बात करें, ऐसा भी कोई एक्टिंग में कॉन्सेप्ट है कि आप माइंड से नहीं बट दिल से एक्टिंग कर रहे हो? एक्टिंग एक्चुअली माइंड से होती नहीं कभी. कोई भी आर्ट कभी भी माइंड से नहीं होती. माइंड सेंटर से आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी देंगे इसका? हाँ, यस. माइंड सेंटर से आपको हार्ट सेंटर तक पहुंचना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आपकी महसूसियत नहीं बढ़ती तब तक कुछ निकलता नहीं है आर्ट के अंदर. कि मैंने वो सामने पेंटिंग है पौधे की, अगर मैंने देख ली तो अब एक फ़ोटो शायद जहन में छप गई होगी, लेकिन जब तक मैं उसे महसूस नहीं करूँगा तब तक ब्रश चलेगा नहीं. और हो सकता है मैं इसको एज इट इज़ माइंड से बना भी लूँ, लेकिन उसके अंदर कोई जान नहीं आएगी. तो वो जो जान है ना, वो आत्मा से आती है, वो बीइंग से आती है. तो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, पता है, डांसिंग, दैट्स व्हाई यू विल सी सम डांसर्स, आपने खुद ही ध्यान दिया होगा, कुछ डांसर्स हैं जो बड़ा कमाल के स्टेप्स करते हैं लेकिन कोई जान नहीं है. क्योंकि चेहरे पे हाव भाव नहीं है, क्योंकि बीइंग के अंदर से कुछ महसूसियत नहीं है, फील नहीं कर रहे. हाँ, एंड व्हेन यू सी पीपल लाइक, अब तो खैर उम्र भी हो गई, बट गोविंदा सर को आप कभी देखो तो जो उनके चेहरे की बस एक मुस्कुराहट और स्माइल भी है ना, आप उसी में इतना ज्यादा आप एंजॉय करते हो एज एन ऑडियंस. बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर कनेक्टेड. यही लिखा गया है, यही कहा गया है, यही महसूसियत है कि वी ऑल आर कनेक्टेड. तो कनेक्शन माइंड से नहीं होता, कनेक्शन तो हार्ट से होता है. कनेक्शन हार्ट सेंटर तो यहाँ पर है. तो जब कनेक्शन तभी होगा जब आप उसको उस मोमेंट में एंजॉय कर रहे हो, महसूस करके. जो दिल से महसूसियत है आपकी, जो आपकी बीइंग से महसूस, मैं दिल भी नहीं कहूँगा, दिल तो एक ऑर्गन हो गया. आपकी बीइंग की, आपकी एवरी सेल ऑफ योर बीइंग जो आपका महसूस कर रहा है, वो महसूसियत जब आपको हो रही है, इसलिए हम एनर्जी कहते हैं, क्योंकि हम एनर्जी बीइंग्स हैं. वो आपकी जो एनर्जी है वो मेरे तक पहुँच ही जाती है. मतलब आसपास बैठे तो अलग चीज़ हो गई, कैमरे पे भी वो एनर्जी ट्रांसेंड हो जाती है. बिल्कुल. कि मतलब अगर कोई कैमरे पे किसी ने बड़ी सच्चाई से अगर रो दिया और बड़ी खूबसूरती उसमें महसूस हो गई, तो जब आप 1 साल के बाद जब आप उसको एडिटिंग के बाद देखते हो तो आपको महसूस होती है, फील होता है. तो मतलब वो एनर्जी वहाँ पे इनकैप्सुलेट हो गई, उसका इम्प्रिंट है.
तो वो यहीं से आएगी बीइंग. सो सारी परफॉर्मिंग आर्ट, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट, it's right from the being. So do people struggle between acting from the mind and acting from the heart? Yes, a lot of people struggle. I struggled for a long period of time because I come from a business family backdrop. All left side It was brain. always so calculative. All left side. Always so calculative. Left side, yeah. Right side is the ये इस तरफ है ना, ऐसे creative हाँ, है ना, left. correct. And right. So always calculative. And you won't believe it, रोहन, एक समय के बाद ना मैंने तय कर लिया मेरे को छोड़ना पड़ेगा इसको, और मैंने छोड़ दिया. मैंने सारा अकाउंट, सारा मैथमेटिक्स, मुझे कोई कहता है बेवकूफ़ हो तो मैं कहता हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ. मुझे कोई कहता है कि आपको नहीं समझ में आता पैसा संभालना, ये करना, मैं कहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बड़ी तपस्या के बाद. मैंने दिन रात की तपस्या की यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस हार्ट सेंटर तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ. क्योंकि उससे पहले तक क्या होता था ना, वो हर चीज़ में एक कैलकुलेशन ही रहती है पहले, क्योंकि वो कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हो गई थी कि पहले फ़ायदा बताओ. बिजनेस में ऐसे होता है, हमें मिलेगा क्या, पहले आउटकम बताओ, बाद में हमें घर से एक कदम रखेंगे. यस, फिर कैलकुलेशंस. आई वाज टॉपर इन मैथमेटिक्स, आई वाज टॉपर इन अकाउंट्स इन माय स्कूल डेज, एंड आई हैड टू लेट गो बिकॉज आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग दैट यार ये तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं हर चीज़ को पहले से तय कर लेता हूँ. मैं सारी लाइंस को पहले से तय कर लेता हूँ, मैं सारे मैकेनिक्स फिर वो मैकेनिकल हो जाता है. हाँ. कि मैंने सब चीज़ें पहले से 100 बार रिहर्स कर ली. हाँ. अब मैं 101 बार रिहर्सल ही आपको चेप रहा हूँ, तो उसमें कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं, कोई बीइंग नहीं, कोई फ्लो नहीं. बस ये है कि मैंने रटा हुआ है और मैं अच्छे से रट के आपको बोल सकता हूँ. उसमें मैं थोड़े बहुत जानबूझ के थोड़ी नौटंकी भी कर दूंगा, झूठ की, ताकि आपको अच्छा लगे. लेकिन वो इट्स जस्ट टू इम्प्रेस. परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस ही हो गई, एग्जीबिशन हो गई. इट्स नॉट गोइंग टू गो डीप इनसाइड योर बीइंग एंड टच इट टू योर कोर एंड हैव सम मैजिकल मोमेंट. इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस. सो यू हैव टू ट्रेवर्स. ये 6 इंच का जो फासला है ना, 6-8 इंच का, ये आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना ही पड़ता है. ये 6-8 इंच का फासला है फ्रॉम माइंड सेंटर टू हार्ट सेंटर. इसमें सालों लगे हैं मेरी तपस्या. तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी चीज़ के खोने का, जाने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मेरे साथ मुझे लगता है कला, हुनर, गुण है, तब तक रास्ता अपने आप बनेगा. कुछ जाएगा, कुछ आएगा. वैसे भी कौन सा ऊपर लेके जाना है, मेरे डैड कौन सा कुछ ऊपर लेके चले गए, सब तो यहीं छूट गया. तो जब तक मिलेगा भोग लेंगे, जब छूट जाएगा तो छूट जाएगा. वैसे भी छूट नहीं. तो आपकी जो जर्नी थी, इनफैक्ट ये मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगता है. पर्सनली आई हैव गॉन थ्रू द सिमिलर प्रोसेस, गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड और हार्ट सेंटर. मुझे तो पता भी नहीं था देयर इज अ थिंग कॉल्ड हार्ट सेंटर, बिकॉज व्हेन यू आर इन द माइंड थ्रू आउट योर लाइफ, यू नो दैट्स द माइंड, देयर इज ओनली वन सेंटर. तो मुझे आपसे ये पूछना था हिमांशु कि एक्चुअली वन ऑब्जर्वेशन, क्वाइट स्ट्रेंज दैट वी स्पेंड 15 years conditioning ourselves, 15-20 years maybe, to be in the left center or the left side of the brain, and then we realize यार हमें 10-15 और साल लगाने पड़ेंगे to do it. इस जर्नी में I know, इस जर्नी में what was, I know you spoke about that momentous moment in your life when your beloved father passed away, but आपने ये जर्नी शुरू कब की कि मुझे अब तो हार्ट सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज और क्या किया क्या इसके लिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो नहीं समझ थी. स्टार्टिंग में तो था अच्छा एक्टर बनना है. तो अब 2000, हाँ, अच्छा एक्टर बनना है, जाहिर सी बात है. 2005 जब सिने स्टार्स खत्म हुआ तो अब वर्कशॉप शुरू हो गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई. तो आपको उस समय तो नहीं समझ में आता कि आप माइंड सेंटर के अंदर अटके पड़े हो. मुझे अच्छी तरह याद है, आई एम ट्राइंग एंड थिंग्स नॉट हैपनिंग. तो मुझे सर ने किताब दी थी, मेरे जो एक्टिंग टीचर थे, एकर्ट टोले की किताब थी, पावर ऑफ नाउ. एकर्ट टोले, पावर ऑफ नाउ. उन्होंने मुझे किताब दी, उन्होंने कहा बेटा इसको पढ़ो. तो मैंने पढ़ा, तो कई समय तक पढ़ा, नहीं समझ में आई, नहीं समझ, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होनी शुरू हो गई धीरे. तो ये जैसे ही चीज़ें थोड़ी, फिर और किताबें पढ़ी, क्योंकि आपको ना समझ थोड़ा जैसे किसी ने ग्लिम्स दे दिया हल्का सा. और इससे पहले आप किताबें पढ़ते थे? उससे पहले इतनी रेगुलरली? उससे पहले किताबें तब शुरू हुई थी. तो पहली किताब की जर्नी शुरू हुई जब क्रिकेट छूटा मेरा, और मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था बैक इन माय कॉलेज डेज, फाइनल ईयर ऑफ हिंदू कॉलेज. जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो मुझे याद है फाइनल ईयर ख़त्म हुआ और मैंने एमबीए की तैयारी शुरू की, कैट के लिए बैठा. मैं अपने दोस्त के घर पे गया था, माय बेस्ट फ्रेंड गौरव, दिल्ली में. उसने मुझे घर बुलाया, घंटा घर में उसका घर है आज भी. तो मैं गया घर में और ना हम लोग बैठे कुछ बातें कर रहे थे. उसके शेल्फ पे किताब पड़ी हुई थी, तो जो उसने पढ़ी नहीं थी, एक नॉन फिक्शन किताब थी. तो उसने कहा तू ले जा पढ़ ले.
और तब तक मुझे नहीं पता था मेरा क्रिकेट क्यों छूटा, या इट्स कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर, मुझे नहीं पता था। मुझे तो बस छोड़ना था, छूट हाँ, गया, अब नहीं हाँ, हो रहा तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ और बिल्कुल, भी करना पड़ेगा, घर बिल्कुल। वाले कहते हैं। तो मैंने वो किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। बहुत ही सिंपल, थोड़े एनेक्डोट्स, बहुत प्यारी सी छोटी सी किताब थी। मैंने पढ़ी, उस किताब में कुछ लिखा था फियर ऑफ फेलियर, कि ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस करते हो और मैचेस में अच्छा नहीं कर पाते या जो भी। तो मुझे वाह, समझ में आया कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी। ये 6-8 महीने क्रिकेट छोड़ने के के बाद की बाद बात है। मतलब मेरे को समझ में आया कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तब मैंने फैसला कर लिया था कि आज के बाद फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा जीवन के अंदर। तो वहाँ से फिर किताबें पढ़ने की एक आदत पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे लगा यार अब मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है। पापा बिजनेस करते हैं, वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, मॉम अपना घर में ही रहती हैं, या जो भी सारी चीज़ें, और इतने कोई बहुत ज़्यादा हम वी डोंट बिलोंग टू एनी उस तरह का एजुकेशनल बैकड्रॉप जो होता है ना, क्योंकि बिजनेस फैमिली अलग बिल्कुल। अलग प्रकार की होती है। तो मैंने कहा मुझे तो खुद को ही समझाना पड़ेगा, खुद को ही पढ़ाना पड़ेगा, खुद को ही सिखाना पड़ेगा। तो मैंने फिर किताबें पढ़नी शुरू की, और वो किताबें पढ़ने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। चल रहा है। Till this very moment that I met you, I was reading a book only. वाओ, वाओ। So, So so books have been my guiding force. fast forward to that book, Power of Now. Yes. So power of now से मुझे समझ में आया कि यार मोमेंट में रहना ज़रूरी है, और क्योंकि हम माइंड सेंटर में है, मेरा ना शुरू से यही था, पास्ट का मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, शुरू से कभी भी नहीं रहा। वो मुझे लगता है फीमेल्स का बहुत ज़्यादा रहता है, दे गेट स्टक। मेरा कभी रहा ही नहीं, मेरे लिए पास्ट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कल खत्म हो गया खत्म। और ना मेरे को कभी ज़िंदगी में मैं सोचता हूँ उसके बारे में, क्योंकि इतनी किताबें पढ़ ली, उसमें यही लिखा हुआ था बचपन से कि आगे देखो, जो निकल गया जो गया, लेट्स गो क्विकली एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स। अब क्या है, ये पढ़ तो नहीं, अब क्या दिमाग आगे भाग रहा है। आगे भाग रहा है मतलब 4 कदम आगे। 4 तो कदम डांस भी 4 कदम आगे हो रहा है, सिंगिंग भी 4 कदम आगे हो रही है, और एक्टिंग भी 4 कदम आगे हो रही है। मतलब ये मुझे अब ये पता लगने वाला है कि आप अगली लाइन क्या बोलने वाले हो। तो आई हैव स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग इट, right? And if I start anticipating it, then again it becomes mechanical. So then अपने आप को 4 कदम आगे से, फिर मुझे 3 कदम, फिर 2 कदम, फिर 1 कदम, फिर अब जाके मैं शून्य पर आया हूँ। तो इसमें समय तो लगेगा ना, क्योंकि इतने सालों की कंडीशनिंग है। तो अपने आप को डीकंडीशनिंग करना, बार बार परफॉर्म करते रहना, बार बार खुद को जांचते रहना, परखते रहना, समझते रहना। बार बार आप फेल भी होते हो, कभी कभी फिर आगे चले जाते हो, फिर अपने आप को समझाते हो कि अब नहीं जाऊंगा, फिर होता है। ये सब चलता ही रहेगा, बट दैट्स हाउ लाइफ इज। ऐसा कोई मोमेंट ऑफ फेलियर जो आपको याद आता है? फेलियर मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलूंगा, बट एज अ लर्निंग वे। नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं फेलियर। मुझे तो लगता है जो चीज़ मेरे मुताबिक नहीं हुई, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ ही वही है, क्योंकि अगर मेरे मुताबिक हो जाती तो मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं होता। जैसे मुझे याद है, मैं इसी के साथ थोड़ा सा, अब डीटोर्स तो पता नहीं क्या हो रहे हैं, वो डीटोर कहें इस क्या कुछ में, बस यही है लाइफ, ऐसी अनप्रडिक्टेबल सी है, हैपेजार्ड सी, एंड दैट्स हाउ आई लिव इट। सो 2005 में जब सिनेस्टार्स ख़त्म हुआ, और मेरी बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि आई वॉज अ डांसर, मुझे बड़ा अच्छा लगता था डांस करना, आज भी लगता है। सो मुझे ये था कि मुझे नच बलिए मिल जाए, बिकॉज मैंने हुसैन और टीना को देख लिया था जीतते हुए, 2006 और 7 की बात है, और हम टीवी शुरू कर रहे थे। हमने सोचा हमारा भी शो हिट होगा, अरे हमें कब मिलेगा। और बड़ी कोशिश की, टीवी शोज़ किए, आई वॉज वेटिंग कि अब हिट हो जाएगा, अब हिट हो जाएगा, अब हिट हो जाएगा। साला कोई हिट ही नहीं होता, तो शो चल जाता था लेकिन वो ब्लॉकबस्टर नहीं होता था। तो जब तक वो ब्लॉकबस्टर नहीं होगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। एंड आई वॉज डेटिंग अमू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, माई वाइफ। सो मैं उसके जहन में तो था नहीं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी। एंड इट डिडंट हैपन फॉर ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स टिल आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट। सर नहीं होने वाला ये। फिर डैड्स डिमाइज हैपेंड। I left acting for a year. I started doing my dad's business because we had to wrap up certain things. And जैसी मेरी शादी हुई है 2015-24 जनवरी, 15 दिन बाद I was offered नच बलिए। एंड बाय देन मुझे लगता है इतनी तैयारी हो चुकी थी मेरी अपनी, चाहे वो डांस की हो, चाहे बीइंग की हो, चाहे एवोल्यूशन की हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की हो। जब मैंने पहले दिन कदम रखा तो मेरे अंदर जीतने की इच्छा ही नहीं थी, और मैं जीत गया। तो जब जब मुझे था कि मुझे करना है और जीतना है, तब तब नहीं हुआ। उसके 10 सालों के बाद हुआ। 2005 में मैंने सोचा था, 2015 में नच बलिए हुआ, एंड देन वी वन इट। एंड आई स्टिल फील कि वही सही समय था जब हुआ है। उससे पहले शायद हो भी जाता, पता नहीं क्या कहानी रची जाती, लेकिन जो कहानी रची गई उसमें देर हुआ ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से, बट मुझे लगता है सही समय अपना निर्धारित है। इंतज़ार करना ज़रूरी है, थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, अपने आप ही मिलेगा। और मेरी ज़िंदगी का ये रहा है
प्रिपरेशन. हाँ, मैं करते रहो, अपना शांत रहो, होगा. आप हर किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा. सबको, हर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती ही आती हैं. जब आपके लिए लिखा होगा आपके लिए भी आएगा. बट यू कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट. संजू सैमसन को तो मिल ही गया ना. समबडी हु वाज आउट ऑफ द बिल्कुल. टीम, ही वाज For नॉट 5 इवन इन years. प्लेइंग 11. For 5 years he was waiting for that I have chance. seen sir because I've been a cricket follower and हाँ, everything. तो मैंने देखा आपको संजू पता को होगा. IPL में क्रिकेट खेलते हुआ and he was top notch at IPL at one point of time. He was never there for India. Never selected. कभी नाम ही नहीं आया संजू सैमसन का. पुराना पास देख लीजिए. बट ये चीज़ कैसे होती है हिमांशु की बंदा इतना अच्छा टैलेंट डिस्प्ले कर रहा है, मेरिट जिसमें हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी टीम पे नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है इसका ना अच्छा 2 तरीके हैं इसको देखने के. एक तो ये है, एक तरीका ये है कि हम देखते हैं कि टीम हमें सेलेक्ट नहीं कर रही है, BCCI सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ये इशू है, वो इशू है, वी कैन ब्लेम ऑन दिस, वी कैन ब्लेम ऑन दैट, एंड देन सिलेक्शन कमेटी, दिस कमेटी. मुझे लगता है सब चीज एक ये तरीका है जहाँ पे आप एक एक्सटर्नल रीजन हो external गए, reasons एक्सटर्नल हैं. रीजन हो गए. अगर आप इसके बारे में सोचते रहोगे कॉन्स्टेंटली तो यू विल बी एंग्शियस, स्ट्रेसफुल, परेशान, डिप्रेस्ड. योर लाइफ विल बी और आप कंट्रोल भी नहीं कर और आप सकते. कंट्रोल नहीं कर सकते. परफेक्ट. तो समझदारी इस बात में है कि, और मुझे ऐसा लगता है 3 सालों की तपस्या के बाद आप खेल अच्छा रहे हो, आप अच्छे प्रेजेंट मोमेंट में भी हो, सब चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें ना आपके अंदर अभी इवॉल्व हुई नहीं है प्रॉपरली जितनी होनी चाहिए. तो मैं आपको दूंगा सब. ब्रह्मांड कहता है मैं सब आपको दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे, शायद आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ईश्वर की या ब्रह्मांड की. मैं आपको सब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टूटना और बाकी है, थोड़ा सा अहम का टूटना और बाकी है, थोड़ा सा आपका और विनम्र होना बाकी है, थोड़ा सा अभी कुछ चीज़ें कहीं खिंचे हुए हैं नॉट्स, उन नॉट्स को अभी रिमूव करना बाकी है. तो भी और तपस्या करो. अब इमेजिन वाओ. ही वॉज, अब मैं इसकी कहानी में आपको बता देता हूँ. शुभमन गिल is India's captain, test vice captain for this, for the one day series also, and he was playing T20 series for South Africa. He was playing, he could not score. Sanju Samson was brought in. Then the last match, Sanju was brought in, Shubman got dropped. Sanju scored 30, 40, 50 run, and they realized कि संजू को इन न्यूजीलैंड सीरीज खिलानी चाहिए. न्यूजीलैंड सीरीज all flop. T20 World Cup, he's not even in playing 11. Rinku Singh is not able to perform like 1 or 2 matches. They decide, चलो let's put Sanju back again in the top तो आप order. सारे इवेंट्स नोट कर रहे हो प्रीसीडिंग दैट. या आप कर ही नहीं रहे हो, ये अपने आप हो रहा है. ये कौन कर रहा है? ये ना मैं कर रहा हूँ, ना संजू कर रहा है, ना ईशान किशन तो था ही नहीं बहुत दूर दूर तक. वो भी कहीं नहीं, BCCI का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि 2 साल तक बिकॉज ऑफ वट एवर बिहेवियर, एराटिक एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी उनका आपस का इशू था. नॉट गोइंग इनटू दैट. He started scoring and Saeed Mushtaq Ali Trophy, and उनको अच्छा लगा, उन्होंने चलो बुला ली. He was in top form. But Sanju's story is something which is written. अब इसको आप क्या कहोगे exactly? आपके हाथ में क्या बचा? अचानक से एक मैच में आपको बुला लिया गया, नामीबिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, आपने 30-35 बना दिए, फिर एक और मैच खिला लिया, 20-25 और बना दिए 15 बॉलों पे. हाँ, कर रैंडम, और कोई डिसाइडेड भी नहीं है इसके अंदर कि क्या होगा. अब मुझे लगता है लास्ट डे तक डिसाइडेड नहीं था कि संजू होगा कि नहीं. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में यू मेक हिम प्ले, ही स्कोर्स 97 नॉट आउट, देन ही इज देयर इन द टीम. स्टिल नॉट डिसाइडेड कि आगे क्या होगा. अगेन ही स्कोर्स. इंग्लैंड वाले मैच में एट 8 हिज सिंपल कैच गॉट ड्रॉप्ड बाय ब्रुक, like a simple sitter at 8, and he goes on to score 89 not out or 89 again in the next match. So of course लेकिन of course मैं ये भी नहीं कहूँगा, not taking anything away from that man, that उस दौरान मन जब इतने बड़े बड़े मैचेस चल रहे हैं, वो जो टेम्परामेंट उसने दिखाया, जो being calm and composed and staying there and staying like playing ball by ball, ये बड़ा मुश्किल काम है. ये तपस्या का खेल है जो आपने इतने सालों की है कि आपने टॉप मैचेस खेल लिए और आपके बीइंग का हिस्सा हो जाता है फिर वो कामनेस. Then you stay centered and balanced. जो MS धोनी के अंदर जो है. धोनी में After आपने धोनी, मेरे I मुंह saw की बात somebody- ले ली. मुझे लगता है कि धोनी के बाद किसी में इतना शुभमन, धैर्य हो, इतनी गहराई में अच्छा, उसके लिए ना धज्जियों का उड़ना भी जरूरी है आपकी. लाइक शुभमन गिल ऑल्सो हैज इट, आई फील, बट अभी वो धज्जियां उड़ी नहीं है. जब उड़ेंगी ना, जब आप ड्रॉप भी होगे, रिजेक्शंस भी होंगी, उसके बाद एक और गहराई आती है. एक आपके बीइंग का हिस्सा होती है, एक और गहराई जो जीवन देखने के बाद आती है, वो और डीपली बनती है, which Sanju has gone through. And that's where we see it now. And that's where, that somebody who's not even in playing 11 is the player of the tournament. तो ये डेस्टिनी किसने लिखी है? And now he's there. Yeah. So we wait. We wait. हम तपस्या करते रहें. At least the lesson I am taking for myself
बी इन प्रिपरेशन मोड, हैव द राइट टेम्परामेंट, आराम से अपनी तपस्या करते रहो. सबके लिए मोमेंट लिखा है, आपका भी मोमेंट आएगा. हर किसी का आता है, बट आप वो उस किसी का भी देख लो. एक्सपेक्टेशन में मत बैठ जाओ. बेसिकली क्या होता है ना, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना रोहन, द थिंग इज एनवायरनमेंट पुश करता है जल्दबाजी के लिए, क्योंकि हम अपने आप को उस रेस का हिस्सा समझ लेते हैं. बट मैं बार बार देखता हूँ, और मैं जो देख रहे हैं उनको भी कहूँगा कि यार, मैं जब घर के बाहर निकलता हूँ, मैं यहाँ से अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, मुझे तो कोई रेस दिख नहीं रही कहीं पर. क्योंकि मैंने तो रेसेस भी देखी हैं स्कूल कॉलेजेस में. यहाँ पे कौन सी रेस है, कौन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? या तो कोई रेस, प्रैक्टिकल रेस मुझे दिखाओ. ये तो आपके माइंड की आइडेंटिफिकेशन की रेस है. आपने अपने 4-5-6 लोगों को चुन लिया, बस 4-5-6 ही हैं आपकी ज़िंदगी में, और कोई नहीं है. आप शाहरुख खान से तो रेस नहीं करोगे ना. आप रेस करोगे अपने 4-5-6 लोगों से, जो आपके आसपास के हैं, जो आपकी उम्र के हैं, कि आपने अपने दिमाग में उन 4 लोगों को तय कर लिया अपने दिमाग में, और आपको लग रहा है आप कंपीट कर रहे हो. अगर करना ही है तो पूरे ब्रह्मांड से करो फिर. अगर इतना ही है तो फिर ये 4-5 से क्यों करना है? इसका मतलब हम बड़ा सिलेक्टिव अपने हिसाब से रेस कर रहे हैं. बचकानी सी चीज़ है मुझे लगता है. जब कोई रेस है ही नहीं, प्रैक्टिकली कुछ है नहीं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. आप लॉयर हो, आप अपना काम कर रहे हो. जब मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लीगैलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपकी मदद मांगूंगा. जब आपको सपोज सेट पे आना है, डीओपी का काम देखना, डायरेक्शन देखनी है, एक्टिंग देखनी है, या कुछ परफॉर्म करना है, तो आप मेरी मदद लोगे. और ऐसे ही जीवन चलता है. म्यूचुअल ट्रांजैक्शनल है जीवन अपने आप में. इन रिलेशनशिप टू एग्जिस्टेंस है. और यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं. हर कोई अपना अपना काम करता है, और उनको अपना काम करने देना चाहिए. जैसे हम सेट पे जाते हैं, सेट पे स्पॉट बॉय भी है, सेट पे मेकअप आर्टिस्ट भी है, वो अपना काम कर रहा है. मेरी नज़र में कोई टॉप नॉच स्टार भी हो या स्पॉट बॉय भी हो, जनरली सब एक बराबर हैं. क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कला है, वो अपना काम कर रहे हैं. एक जो स्पॉट बॉय है वो अपना काम कर रहा है. ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है. मेरा काम वो नहीं कर सकते, उनका काम मैं नहीं कर सकता ना. बस ख़त्म कहानी. और सब अपना अपना काम करके इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं. तो पूरा स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं. तो जब आप उस नच बलिए के मोमेंट पे मुझे बता रहे थे कि व्हेन यू रीच देयर एंड यू फेल्ट मुझे कोई जीतने की इच्छा नहीं है. इच्छाएं सारी खत्म हो चुकी थी ना. उससे पहले मैंने डैड की मृत्यु देख ली थी. जब मैंने इतनी बड़ी चीज़ देख ली, तो मुझे लगा जब जीवन ही ख़त्म हो जाता है एक लम्हे में, तो फिर क्या जीत और क्या हार. बट आई नो मैं हूं तो जीवन है ना. उस टाइम भी एंड व्हेन आई रीड द प्रेस ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल स्पोक अबाउट यू एंड योर वाइफ्स परफॉर्मेंस एज वेल. किस एनर्जी से आपने परफॉर्म किया, केमिस्ट्री थी, ऑल दैट. एंड यू नो वन ऑफ द फेवरेट कपल्स जो थे उस टाइम, दैट वाज कमिंग आउट. तो वो जर्नी कैसी रही आपकी? यार वो तो कर्म है. कर्म तो करना ही है. सर नीचे रख के कर्म करने की तो आदत है. तो कर्म का मेरे आउटकम से कोई लेना देना नहीं है ना. और जेन्युइनली ऑल्सो आई विल स्टिल से दैट जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, मुझे अब कुछ महसूस हो गया उस पूरे एनवायरनमेंट में, कि ये चीज़ें ना मेरे लिए पुरोई गई हैं इस समय. कि मैंने जितनी भी तपस्या की है जीवन के अंदर, मेरे डैड की मृत्यु को जैसे मैंने हैंडल किया, या जो भी काम था नहीं था, रिजेक्शन थी, डिसअपॉइंटमेंट्स थी, 10 साल तक शोज़ हिट नहीं हुए, ये नहीं, जो भी अपेक्षाएं टूटी, जो भी हुआ इतना सब कुछ लाइफ के अंदर, ईश्वर ने कहा चलो बेटा अब तुम्हारा समय आ गया फल देने का. आई रियलाइज इट इन द फर्स्ट एपिसोड ओनली दैट समथिंग इज ट्रांसेंडिंग. ऐसा होता ना, वो the universe conspires for you for everything. And you could see that. And I could feel it. Feel it. See तो पता नहीं, but I could feel See it. in the sense of synchronicities हो रही है. See what people are speaking about us. See what outsiders are speaking about us. See कि सारे फैक्टर्स अलाइन हो गए हैं कि आसपास के लोगों के हम अपने आप ही फेवरेट बन गए. मैंने ऐसा कुछ किया नहीं. मैं जो हूँ मैं हूँ, या अमृता जो है. पता नहीं वो लोग किस नज़र से हमें देख रहे हैं कि उस लम्हे में हम आपके फेवरेट हो गए. तो ऑफकोर्स कर्म तो था ही, कला तो थी ही, वो छुपी हुई थी, उसका एग्जिबिट होना था, वो एग्जिबिट हो गई. उसका अपना समय आया जब कला, जैसे सलीम साहब की ना बड़ी अच्छी बात है, सलीम खान साहब जो सलमान साहब के फादर हैं, उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, पहले भी सुनी है बात, बड़ी अच्छी बात है. कह रहे हैं जब ईश्वर आपको कला देता है, जब सरस्वती आपको आपके पास आती हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप अपना रास्ता खोजेगी ना. ईश्वर ने कला दी है तो कुछ सोच समझ के दी है ना आपको. वो रास्ता अपने आप खोजेगी. आप क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा नहीं है वो एग्जिबिट नहीं करे, वो एग्जिबिट करवाएगी. किस स्टेज पे एग्जिबिट कराना है वो तय करेगी. आप क्यों तय कर रहे हो?
प्रॉब्लम क्या है, अगेन वो डरपोक दिमाग हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता है। कि फेल ना हो जाऊं, ये ना परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना होए। ये तो सारा परफॉर्मेंस प्रेशर ना स्कूल स्कूल से ही आता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यू स्टडी इन दिल्ली। हमें ना बहुत डर है लोगों का कि लोग क्या कहेंगे, और मेरी ज़िंदगी में मायने नहीं रखता। वो इसलिए मायने रखता क्योंकि मैं लोगों को अपने आप से अलग नहीं देखता हूँ। मैं आपको और मुझको अलग नहीं देखता हूँ। तो जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, आज नहीं, बहुत साल हो गए, बचपन से ही कर रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि 200 लोग, मुझे लगता है मेरे अपने ही तो हैं यार, मैं ही तो, ये मेरा हिस्सा है, मैं अपना है, तो अगर यहाँ पे गड़बड़ हो भी गई तो हो भी गई ना, ऐसा भी क्या है। कौन सा कोई उठा के चाकू ही मार देगा मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना, कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं अपने दिमाग में बेकार की कहानियां क्यों बनाऊं। हैविंग स्टिल सेड दैट, कभी ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, गलतियां हो गई तो मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो। स्टेज पे खड़ा हो कोई भी इंसान आके कुछ बोल देगा, कुछ गलती हो गई तो गलती है, तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, इसमें क्या अहम। तो इतनी बड़ी बात दिमाग में बनानी ही क्यों। होता क्या है, जब हम दिमाग में बहुत बड़ी बना लेते हैं किसी चीज़ को, मैं अभी इतने सालों से हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं कि परफॉर्मिंग इन सीन वर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो, जब हम वन टेक परफॉर्म करते हैं, मैं देखता हूँ लोग बड़े डरे हुए हैं, और मैं उनको कहता हूँ क्यों डरे हुए हो, अपने ही तो 20 लोग बैठे हैं, क्या दिक्कत है, कोई कुछ कह देगा। एक्चुअली क्या है ना, हमें ना इम्प्रेस करने का बड़ा शौक है। बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमें लगता है बस लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं हमारे लिए, और हमारे ईगो और परफॉर्मेंस मोड। हमारे मेरे परफॉर्मेंस मोड ऑन। हाँ, परफॉर्मेंस मोड इसलिए क्योंकि इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस इसलिए करना है क्योंकि ईगो को वाहवाही मिलती है। मैंने देख लिया उसका खोखलापन, मैंने इज्जत का खोखलापन देख लिया, ईगो का खोखलापन देख लिया, तो मुझे लगता है कुछ नहीं, बेकार की बात है। इज्जत तब तक है जब तक मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तब तक आपकी नज़र में मेरे लिए बड़ी इज्जत है। जिस दिन मुझसे कोई गलती होगी जाने अनजाने में आपके लिए, तो वो सारी इज्जत एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है, फिर गालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये कैसी इज्जत, इतनी खोखली। जब मैंने देखा अपनी आंखों से इस खोखलेपन को, कि एक लम्हे में आप किसी के लिए ईश्वर, ईश्वर मतलब लिटरली ईश्वर, क्योंकि मैंने शेयर एंड ग्रो भी किया है बहुत समय तक, तो लोगों ने ईश्वर भी माना एक टाइम पे, क्योंकि आप जब किसी की ज़िंदगी में हल्का सा कुछ दे देते हो और उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो अपनी बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ जाते हो, तो आप उसके लिए ईश्वर समान हो जाते हो। करेक्ट। तो मैंने वो ईश्वर बनते हुए भी देखा है, और एक लम्हे में गाली में पड़ते हुए देखा, कि वो उस एक लम्हे में मैंने उस इज्जत को उतरते हुए देखा। तो मैंने उसी दिन उसी लम्हे पे खोखलापन देख लिया था। तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, मेरा बस ताल्लुक़ स्वयं से है, और मुझे लगता है बस इतना ही बहुत है, इतना ही ठीक है। जिसको जो लगे लगे, कोई इज्जत दे तो थैंक यू, नहीं दे तो भी थैंक यू। मैं अपना जीवन जैसे जीना चाहता हूँ मैं तो जीऊँगा। आपने मुझे ना 8-10 स्ट्रैंड्स ऑफ क्वेश्चनिंग दे दी है। मैं बस एक पकड़ना चाह रहा हूँ। यू मेंशन शेयर एंड ग्रो, जो SAG सैग डायरीज। यस, लाइक दैट। ये था क्या इनिशिएटिव, और ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये उस लम्हे पे शुरू हुआ जब मैं एक्टिंग से बहुत बोर हो गया था। 2016 की बात है, और मुझे लगा बहुत साल हो गया है लेकिन मुझे फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने कई साल टेलीविज़न किया, और मुझे ऐसा लगा क्योंकि टेलीविज़न अपने आप में क्वांटिटेटिव मीडियम है, आप उसी सर्कल में घूमते रहते हो, उसी तरह के लोग, उसी तरह की बातें, मुझे लगा मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। माई बींग वॉन्टेड टू expand, but I didn't know the way. And in that very moment, my wife Amrita, she told me, in one moment some incident happened, and then she told me कि यार तुम्हें कुछ करना चाहिए, जिससे तुम लोगों से मिलो, बात करो, तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाहर आना ज़रूरी है, जो बाहर अभी तक नहीं आया पूरा। तुम एक्टिंग करो, करते रहो, बट समथिंग नीड्स टू गो बियॉन्ड इट। और ये उसने उसकी झलक नच बलिए में देख ली थी, क्योंकि नच बलिए में मैंने कुछ बोला था, एक लाइन थी कि जब इंसान, ऐसे किसी ने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया था, इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। गलतियों का क्या करोगे? हाँ, मतलब वो किसी ने, उन चेतन सर ने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया, तो शायद फिर वो लाइन, एंड एवरीबॉडी वाज टीयरी आइड ऐसा। हाँ, वो सब लाइन बड़ी, आज भी 10 साल 12 साल से वो लाइन घूमती रहती है मेरे आसपास ही, लोग भेजते रहते हैं वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। देखो कमाल की बात है ना, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि मैंने एक लम्हे में कुछ बोल दिया, उन अल्फाजों को कहीं पहुंचना था, तो ईश्वर ने अपने आप ही, या इस यूनिवर्स ने अपने आप ही उसको रिकॉर्ड करवाया, उसको एडिट करवाया, और लोगों ने इसको घुमाया 10 साल तक, कि आज भी घूम रही है। 2015 की बात है, 2026 की बात करो, आज भी घूम रही है वो लाइन। तो मतलब मेरा क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं, ना मेरे वो अल्फाज जो मोमेंट में आया मैंने बोल दिया, बस उसका पहुंचना कहीं ज़रूरी था। शायद इससे कुछ लोगों की अपनी ज़िंदगियां बदलनी होगी, कुछ लोगों के अपने रिश्ते खूबसूरत होने होंगे,
तो इसका मैं कैसे कुछ ले लूँ? तो जो अपने आप हो रहा है उसे होना देते हैं। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, मैं खुद ही भूल गया मैं कि क्या ये इनिशिएटिव आपने हाँ, इनिशिएटिव। सो आपको कुछ देन माय वाइफ कुछ मस्ट हैव कहना सीन रहता इट है, कि वो लाइन वाइन वो वहाँ से झलक आ गई थी। हाँ, देन शी टोल्ड मी कि तुम ऐसे शुरू करो। देन आई स्टार्टेड आई वेंट बैक टू दिल्ली, बैक टू माय स्कूल। वहाँ पे वहाँ से शुरुआत की। स्टूडेंट से मिलना, बच्चों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आपका कौन सा स्कूल था? कुलाची हंसराज, अशोक विहार। तो वहाँ पे गए और स्कूल्स में गए, फिर एक स्कूल से दूसरा स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल्स। किसी ने मिस इंडिया के लिए बुला लिया, वहाँ चले गए, मिसेस इंडिया। सो आई स्टार्टेड शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंसेस एंड आई ऑल्सो वी टर्म्ड इट एज शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव। एंड आई ऑल्सो डिसाइडेड कि जो भी मेरे जहन में आएगा, इसकी कोई तैयारी नहीं होगी, इसकी कोई स्पीचेस नहीं होंगी, कोई प्रिपरेशन नहीं होगी। जो भी मेरे फेलियर्स रहे हैं ज़िंदगी के, जो भी मेरी गलतियाँ रही हैं, आई विल जस्ट कम ओपन हार्टेडली शेयर एवरीथिंग। एंड बस जो मेरे जहन से निकलेगा मैं शेयर करूँगा, और जो उसके साथ जुड़ी हुई विजडम है उसको मैंने जो ग्रहण किया उसको मैं आपसे आई शेयर कर दूँ। बस इतना ही है। अगर मेरे मेरे कुछ कहने से अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ विजडम आ सकता है तो बढ़िया, नहीं आ सकता तो भी बढ़िया। तो देन इट रैन फॉर 6 years। 6 years आई डिड नॉट एक्ट। There was no acting project. There were acting projects, but I was declining them. I also end up doing Shershah and Wajah Tum Ho and Rajshree's film in between. वो अपने आप आ गई, मैंने कोई मेहनत नहीं की, तो मैं कोई क्रेडिट लूँगा मैं नहीं, उसमें कोई तपस्या नहीं थी मेरी कला से लेकर। बट इट वॉज मोर इन टू लाइफ एंड आजकल एक शब्द है स्पिरिचुअलिटी, खैर वो शब्द ही है, बट जीवन से रिलेटेड जीवन से रिलेटेड। हाँ, बस आई रियलाइज दैट आई वांट टू लिव माय लाइफ एंड एक्सपैंड एंड फील लाइफ एट द डीपेस्ट डिनोमिनेटर एंड देन एक्सप्रेस इट। एंड एक्सप्रेसेस। वो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि जब आपका प्याला भर जाएगा तो बाहर निकलेगा ही। बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आपके हाथ में नहीं है, वो अल्फाज निकलेंगे। चाहे अब वो मैं ऐसे अल्फाज निकलें, या नोए के साथ कॉफ़ी टेबल पे बैठ के निकलें, या आपके साथ घर पे बैठ के निकलें, उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया, कंपनी बंद कर दी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको बंद कर दिया मैंने कुछ साल पहले, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये भी एक बवंडर है, ये भी चक्रव्यूह है। एंड आई वॉज इन दैट चक्रव्यूह ऑल्सो। तो दिन में 3 वीडियोज़ जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कम से कम 2000 वीडियोज़ से ज़्यादा होंगे, ड्राइव भरे पड़े हैं हमारे इतने टॉक शोज़ कर लिए, पॉडकास्ट। एंड ऑफ कोर्स द क्यूरोसिटी वाज आल्सो देयर टू नो, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। फिर एक समय के बाद अगेन यू हैव टू गो थ्रू इट ना, टू गो बियॉन्ड इट। फिर एक समय के बाद आप थम जाते हो, आप ठहर जाते हो, आप रुक जाते हो अपने आप, अपने भीतर। फिर मैं ठहर गया, फिर मैंने सब डिसॉल्व कर दिया, मैंने कहा हो गया इनका बस। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि एक आपकी खुद की लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी है, और आप अपनी किसी तरह रूह या स्पिरिट से टच में भी हो, ये कह सकता हूँ। इज़ इट अ फेयर स्टेटमेंट? इट इज़ ट्रू। वो इसलिए क्योंकि वो कई सालों से, शायद बहुत सारे सालों पहले जब किताबें पढ़नी शुरू हुई, तो वहीं से थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, वो ग्लिम्सेस मिलते गए। फिर जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, उतार चढ़ाव आए, रिजेक्शंस हुई, एक्सेप्टेंस हुई, डेथ्स हुई, सारी चीज़ें हुई। जब वो सारी चीज़ें होती हैं तो और गौर से ज़िंदगी देखते हो। फिर उसके बाद आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है कि कुछ भी हो लाइफ के अंदर, आपको ना जागृत तो रहना ही है। जितना मैं अगर जागृत रहता हूँ, आँख खोल के रहता हूँ, तो मैं जीवन को देख सकता हूँ। तो मैं अगर मैं नहीं रहता तो फिर मैं अपने आप को परेशान करता रहता हूँ। तो मैं अपने अब ये फैसला तो मुझे कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा ना रोहन, कि या तो मुझे रोज़ परेशान करना है खुद को, या मुझे जागृत रह के ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है, जिससे मैं जीवन में आगे भी बढ़ सकूँ। तो इस थॉट प्रोसेस से आपकी एक्टिंग, आपकी कला भी इम्प्रूव हुई? 100% यस, 100% इम्प्रूव हुई। क्योंकि क्या हुआ, इट्स वेरी सिंपल ना, ये कैमरा है, अगर इस कैमरा को वहाँ 5 फीट से लेकर यहाँ पे रख देंगे एंड इट स्टार्ट फोकसिंग ऑन मी, इट विल बिकम डीफोकस्ड। तो जैसे आप कैमरा दूर रखते हो तभी फोकस लेता है ना। तो अगर मैं 5 फीट दूर से देखता हूँ जीवन को, तो मुझे जीवन पूरा दिखता है क्लियर एज एन ऑब्जर्वर। अगर मैं बहुत डीपली घुस जाता हूँ तो मेरा साक्षी भाव खत्म हो जाता है, विटनेसिंग खत्म हो जाती है, मैं उसके अंदर डूब जाता हूँ और मैं उसके अंदर डीफोकस हो जाता हूँ। इट्स लाइक सपने के अंदर घुस जाता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ, मुझे लगता है यही सच है, ऐसा तो है नहीं। इंसेप्शन हो गया। सो द ओनली थिंग दैट आई ट्राई एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो व्हेन आई एम राइटिंग अ सीन और डायरेक्टिंग अ सीन और एक्टिंग अ सीन, कि क्या मैं उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली, जो आमिर खान साहब बहुत कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिवली देखना, कि पहले तो फिल्म देखो कि फिल्म की कहानी
कुछ कह रही है ये नहीं, या सिर्फ अपने आप को ही देख लिया, अपने अहंकार को देख लिया कि यार मेरी एंट्री होगी, मैं मर्सिडीज से उतरूंगा और उसके बाद मेरे जूतों का शॉट होगा, फिर मेरे हाथ का शॉट होगा, मेरे सनग्लासेस का शॉट होगा एंड पीपल विल क्लैप फॉर इट। हो गया, वो ज़माने ख़त्म हो गए। कहानी क्या है? क्या वो लोगों तक पहुंच रही है? क्या उसके अंदर कुछ अंश है, कुछ डेप्थ है? बट ये जो मेच्योरिटी और जो आप ट्रांसेंडेंस की बात कर रहे हो, इज इट नाउ हैपनिंग विद लेट्स से जो न्यू कमिंग एक्टर्स आ रहे हैं उनमें भी आपको दिख रहा है, या इट्स मोर ऑफ लेट्स से समटाइम्स कुछ कहते हैं कि वो चीज़ें एज से आती है जैसे हमारे हमेशा बड़े बोलते थे, और इज इट बिकॉज यू सीइंग इट इन द कंपनी ऑफ लेट्स से मिस्टर आमिर खान और SRK और सलमान जी, उसमें दिख रहा है आपको? यार मैं ना इस बात में कंप्लीटली एग्री तो नहीं करता कि उम्र से सब आता है। मुझे लगता है अगर आँख खुलनी है तो एक लम्हे में खुल जाएगी, नहीं खुलने तो ज़िंदगी भर नहीं खुलेगी। सुनना तो मैं यही चाहता था, बट सच क्वेश्चन तो यही यही है था। और मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं आजकल के कुछ कुछ यंगस्टर्स से मैं मिलता हूँ, मैं सीन्स करता हूँ, परफॉर्मेंसेज होती हैं, मिलता हूँ, समझदार है यार। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों कहते हैं कि नई जनरेशन समझदार नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बिखरी हुई हो सकती है, थोड़ी सी भटकी हुई हो सकती है, लेकिन हम भी भटके हैं। भटकना तो जीवन। आप बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे? पहले भटकते कैन हो यू से दैट वंस अगेन प्लीज? कि आप बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। पहले आपको बिखरना पड़ता है, तभी आप आपके अंदर निखारता आती है ना। तो थोड़ा सा समय लगता है भटकने के लिए। आप भटकोगे तो उसके बाद ही तो पाथ मिलेगा। ज़िंदगी में कोई भी पाथ लिखवा के नहीं लाया, मुझे भी नहीं पता था कि क्या पाथ होगा, बट देन थोड़ा भटकना लाजमी है। आपने तो यहाँ पाथ से फिर यहाँ हो किया, हाँ, तो फिर यहाँ ऐसे ही किया, होता है, फिर जीवन यहाँ को किया। ढूंढ ही रहे हैं ना। अगर मैं इस जीवन में आया हूँ और मुझे किसी ने पहले से पाथ दे दिए तो मुझे लगता है उससे घटिया जीवन ही कोई नहीं है। तो गेम ही रिग्ड है फिर पूरी rigged, बात। exactly, it's like the match fixed. Absolutely, thank you for bringing out the words. It's like a match fixed and a match rigged. आपको पहले से पता है क्या कि होने धोनी वाला है? 2011 वर्ल्ड कप में आखिरी बॉल पे 6 मारेगा, करेक्ट? अगर वो छक्का है पता ना। होता तो उसका जॉय खत्म हो चुका होता। वो तो मजा ही उस मोमेंट का है जब आपको पता ही नहीं कि वो छक्का मार के पूरा वर्ल्ड कप जिताएगा, करेक्ट? तो अगर मुझे पहले से पता है तो जीवन ही क्या रहा। तो यार भटकना लाजमी है। भटकने को हम ऐसे क्यों लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हम हर चीज़ को प्रॉब्लम, प्लेजर और पेन के ना, थोड़ा सा पेन आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर, हमें लगता है कि यार ये क्यों आ गया है। सुखद जीवन के साथ दुखद जीवन जुड़ा हुआ है। दोनों एक ही धागे के हिस्से हैं। प्रॉब्लम क्या, हम इसको अलग देखते हैं, इसको, ये दोनों एक ही धागा है। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। कभी इस तरफ होगी लाइफ, कभी इस तरफ। इट्स लाइक द सनराइज एंड द सनसेट एंड इट कीप्स रोटेटिंग। बट हम देखते नहीं है वैसा। तो आजकल के जितने भी लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ, बातें करता हूँ, सीन्स करता हूँ, परफॉर्मेंसेस करता हूँ, कॉफ़ीज़ में मिलता हूँ, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, एंड आई लव जेन्युइनली लव, आई थिंक दे आर सो वाइज। द ओनली थिंग इज समटाइम्स वी लैक गाइडेंस, वी ऑल्सो लैक। या वी नीडेड गाइडेंस, वी एंड नीड वो समझ गाइडेंस। जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज़िद्दी हैं। आप, द प्रॉब्लम इज हम उनको उनके स्तर पे आके समझते ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर 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 मैं इट्स, और ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है, तो इसका उम्र से तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो अभी भी अटके पड़े हैं अपनी जीवन में। तो आँख खुलनी तो 20 साल में भी खुल सकती है, 25 में भी खुल सकती है, नहीं खुले तो 70 में भी नहीं खुले। वो फंसे हुए हैं आज भी। मैं बहुत सारे डरपोक लोगों को देखता हूँ अपने जीवन में कि 60-70 साल उम्र हो गई है, जीवन के आखिरी कगार पर, लेकिन डरे ख़त्म नहीं होते। ऐसे सब चीज़ों को ऐसे पकड़ा हुआ है और जकड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमने ना चीज़ों को पकड़ा नहीं होते हैं, हम खुद उसमें कैद हुए हैं, हम ये भूल जाते हैं। इट्स लाइक दिस इज़ द कप। अब दो तरीके हैं इस कप को देखने के लिए, ठीक है? एक तो यह कि एक कप है, ये टूट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा आ जाएगा, या इसको जोड़ लेंगे। द प्रॉब्लम इज़, जब मुझे किसी ने कह दिया यार हिमांशु, जैसे नॉय यहाँ बैठे, नॉय ने कहा कि यार हिमांशु, दिस इज़ माई मॉम्स फेवरेट कप, आई एम गिविंग इट टू यू, यू प्लीज़ टेक केयर। अब मैंने इसकी इमेज बना ली अपने दिमाग में। अब इस कप ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं सारा दिन बैठ के ना इस कप को शाइन और पॉलिश करता रहूँगा कि इसको टूट ना जाए, ये गिर ना जाए, ऐसा आराम से बिल्कुल, लाइक आई एम एग्जैक्टली। वॉकिंग ऑन नाउ एगशेल्स। यस, सो नाउ हु इज इन द प्रिजन, यू और द कप? ऑब्वियसली यार, मी। हु इज क्रिएटिंग द प्रिजन, यू और द कप? मी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इतना ही सिंपल है कि अब आप डिसाइड कर लो कि आप, और मुझे, मैंने आपको कहा था ना, मुझे आज़ादी का बहुत शौक है ज़िंदगी में। मैं आज़ाद जीना चाहता हूँ। और मुझे समझ में आया, महसूस की, मैंने बहुत साल पिंजरे में रहा हूँ। जब आप बहुत साल पिंजरे में रहते हो तो आपको आज़ादी की अहमियत महसूस हो जाती है। इसके लिए मैं सब चीज़ें गंवाने को तैयार हूँ। तो मुझे किसी कप से कोई लेना देना नहीं। इस जर्नी में जब आपने बोला यू मेट योर वाइफ एज वेल,
अगेन ये चीज़ बहुत सुनी है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, तो प्लीज़ आप इसको डीमिस्टिफाई ज़रूर करना कि इन बॉलीवुड इंडस्ट्री एज अ कपल शुरुआत करना विद ऑल द फेम, विद ऑल द ग्लैमर, अटेंशन, डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, और रिश्ते में भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था, इज़ इट ट्रू, मतलब ये होता है, आर दे लाइक चैलेंजेस जो एक नॉर्मल कपल को ट्रेडिशनली नहीं फेस करने पड़ते? यार मुझे ऐसा लगता नहीं कि फेम और एनी अदर थिंग लाइक दैट जो हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ी हुई है, इस तरह की कोई इश्यूज़ रहे हैं मेरे और अमृता के बीच में। अगर हमारे रहे हैं, जो भी ऑब्वियसली लाइफ है बहुत से, बट हमारे अपनी चीज़ें हो सकती हैं, हमारी अपनी कंडीशनिंग से फाइट हो सकती है कि मेरे आई कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कंडीशनिंग, शी कैन कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कंडीशनिंग, बट इट्स गॉट नथिंग टू डू कि कौन ज़्यादा फेमस है, कौन कम फेमस है। घर में आके तो दोनों एक बराबर ही होते हैं यार, इतना ही सिंपल है। घर में आके कोई फेम का ताल्लुक थोड़ा ना होता है, घर में बिल्कुल। आके तो खाना ही खा रहे हैं यार। बिल्कुल, बातें ही दोनों कर रहे साथ हैं, में ही खा रहे हैं, बातें कर बातें रहे कर हैं। रहे हैं। और इतने साल काम करने के बाद या उससे पहले भी इतनी समझ तो होती है कि आज मेरा शो हिट है, कल आपका हिट हो सकता है, जैसे जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल भी दिया है कि जब अमृता राजी कर रही थी, तो आई वॉज द वन हु टोल्ड हर टू गो एंड मीट जोगी जी, द वन हु वाज कास्टिंग फॉर इट, एंड शी डिड नॉट हैव वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड शी वेंट एंड डिड राजी क्रॉस 200 crores. Next year I was doing Shershaah with Dharma, which also crossed 200 crores, right? So what I'm just trying to say is ये तो ऐसा ही है, और ऐसे ही था, और ऐसे ही रहेगा। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इंसान, वाइफ तो छोड़ दो, मेरा ब्रदर भी हो, मेरे फादर भी हो, अगर सेम इंडस्ट्री में है, टाइगर श्रॉफ एंड जैकी श्रॉफ सेम इंडस्ट्री में, क्या उनके करियर सेम चलते हैं? ऑब्वियसली नहीं, कभी भी नहीं चलते, कभी भी नहीं किसी के भी नहीं चलेगी, चल सकते, कभी किसी का ऊपर, कभी किसी का नीचे, कभी ये चलता ही रहेगा। अब आपको अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं समझ में आए तो भी बेटर ही है। तो भी बेहतरीन है। तो इस जो भी होगी, जो भी बात होती है, वो आपकी आपस की होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें होती है, जो हर इंसान, हर दो लोगों के रिलेशनशिप में होती है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो प्रेमी हों, चाहे वो शादी में हों। तो जैसे अनबन हो जाती है वैसे अनबन होती है, फिर उसके बाद मना भी ले तो मना भी ले, तो नहीं होती नहीं भी होती, तो सब चीज़ें, जैसे जीवन है, जीवन वैसे ही चलता है। और बट आपका रिलेशनशिप का सहयोग रहा है इन हेल्पिंग यू और ब्रिंगिंग यू स्टेबिलिटी इन योर सो कॉल्ड अनसर्टन जर्नी ऑफ बॉलीवुड? क्या रिलेशन का उसमें हेल्प रहा है? मैं इसको ऐसे देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अमृता को अगर 5 मिनट के लिए साइड में रखा जाए, वो इसलिए क्योंकि मेरी जर्नी अपनी थी ना यार, तो मैं उसको क्यों बीच में लाऊं? पहली बात तो ये है, उसकी अपनी जर्नी है टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड वट एवर शी हैज़ डिज़ायर्स फॉर हर सेल्फ और हर फैमिली। और मेरी अमृता से मिलने से पहले भी एक ज़िंदगी थी। मैंने शुरुआत वहाँ से की जहाँ वो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को अपनी डिज़ायर चाहिए था अपना। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है, उससे हिमांशु की जर्नी, तो उसकी अपनी जर्नी है। तो इसमें जितनी भी अनस्टेबिलिटी है वो मेरी वजह से है, जितनी भी स्टेबिलिटी है वो मेरी वजह से, तो मैं इसका श्रेय किसी को भी नहीं दे सकता, और वो सही भी नहीं है ना देना, क्योंकि इसका क्रिएटर भी मैं हूँ, इसका मेंटेनर भी मैं हूँ, और इसका डिस्ट्रॉयर भी मैं हूँ। तो इसका विष्णु भी मैं, शिव भी मैं, और ब्रह्मा भी मैं, क्योंकि क्रिएट मैंने ही किया था, डिस्ट्रॉय भी मैं करूँगा। अगर वो अनस्टेबल होगा तो मेरी वजह से होगा, अगर वो स्टेबल होगा तो भी मेरी वजह से होगा। इसका किसी से कोई लेना देना ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, क्योंकि दिस इज़ माई ओन जर्नी। तो इस जर्नी को लेट मी आस्क डिफरेंटली, इस जर्नी को बेटर बनाने के लिए कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं लाइफ में। ये तो होगा ही, ये तो होगा। तो उसमें डेफिनेटली अमृता हैज़ बीन अ फैसिलिटेटर इन दैट, एंड विद अमृता ऑल्सो देयर हैव बीन न्यूमरस पीपल। आपकी मदर? सॉरी, आपकी मदर? my mother, my father, the moment he said कि बेटा वहीं पर हो, वहीं पे रहना, ये जो कॉल था ना, याद है मैंने आपको आपने मुझे बोला बताया कि जब उन्होंने कहा कि अब बेटा वहीं वहीं कुछ कर कराना, उन्होंने मुझे बोला ही नहीं वापस आने के लिए। जबकि उससे 1-1.5 साल पहले जब मैं एमबीए करने से पहले या एमबीए करने के बाद, मुझे बीच की कुछ बात थी जब मैंने उनको कहा था 1 महीने का ब्रेक है, मुझे मुंबई जाके कोई वर्कशॉप करनी है एक्टिंग की। तो उन्होंने कहा बेटा क्यों, आप बिज़नेस करोगे जब एमबीए कर रहे हो? और उसके 6-8 महीने के बाद जब सिने स्टार्स कॉन्टेस्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने मेरी टिकट बुक करवाई, मुझे भेजा मुंबई, और उन्होंने कहा वहाँ पर हो, वहीं कर आना। ये तो उन्होंने मुझे पंख दे दिए उड़ने के लिए। तो मुझे लगता है क्या कंट्रीब्यूशन है उनका। मेरी मॉम जो जो हमेशा कभी कभी जब रिलेटिव्स बोलते रहे कि वापस आ जाओ, नहीं हो रहा, कई साल ऐसे भी गुजरते हैं जब आपको, और हमारे यहाँ तो क्या है, दिखता नहीं तो लोगों को लगता है वापस बुला लो, बिज़नेस करवा लो। मेरी मॉम ने कहा नहीं बेटा,
जो कजन्स बोल रहे हैं दिल्ली में तो पता ही है रिलेटिव्स तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, तो उनका था कि वापस बुला लो, ये करवा लो, वो करवा लो, बिजनेस ही करवाओ, अरे कहाँ भेज दिया घर के बड़े बेटे को, आप अकेले हो गए हो। मेरी मॉम ने नहीं कहा मुझे वापस आने, नहीं रहे, उनका कोई दिक्कत नहीं, फिल्में नहीं मिल रही टेलीविजन करो, टेलीविजन में नहीं मिलेगा कुछ और करो, करते रहो। तो सबका अपना अपना, मेरा बेस्ट फ्रेंड गौरव, मेरा दोस्त शोभित, नमन, इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं इस जर्नी के, मेरे टीचर्स, मतलब आपके पार्टनर तो आपको ऑफ कोर्स आप 24 घंटे रहते हो, एक अलग चीज़ होती है। माय टीचर्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अनदर लेवल। मतलब जो जो आज भी मेरे साथ हैं इतने सालों से, जो मैं आज भी हर 2-3 महीने में उनसे मिलने के लिए जाता हूँ और वो मुझे जीवन के बारे में समझाते हैं, लाइफ जिन्होंने मुझे पावर ऑफ नाउ दी, मतलब उन्होंने मुझे जीवन की एक दिशा दे दी। वो सारी किताबें जिन्होंने मुझे जीवन दिखाया, सिखाया, वो सारे फेलियर्स, वो सारे लोग, वो सारे मिराकुलस पीपल, जो जब मैं बिल्कुल मेरी लाइफ में धज्जियाँ उड़नी पड़ी थी, कोई आके किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मुझे कहा कि चलो आगे बढ़ो, वो सारे लोग, ये पूरा यूनिवर्स, आई वुड से, क्योंकि द यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मतलब मैं आज भी अपने आप को, मतलब बहुत शुक्र है इस बात का कि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी तपस्या, हर कोई गुजरता है, मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हूँ, हर कोई अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, बट जितनी भी तकलीफ़ों से गुजरता है उसने मुझे हमेशा इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाया है जीवन में, जिन्होंने आके जीवन में आगे ही बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा शुक्राना है इस बात का कि मैं लोगों को, मैं रोड पे चलता हूँ, मैं ऑडी में भी घूमा हूँ, मैं रिक्शा में भी घूमा हूँ, पैदल भी घूमो, मैं रेंट पे भी रहा हूँ, मैं पैदल भी घूमा हूँ, मैं चल के भी गया हूँ सब जगह। मैं आज भी रोड पे देखता हूँ लोगों के पास छत नहीं है, लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। लोग जब आते हैं हमारे ही देश में, जब मैं बेगर्स को देखता हूँ यार, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हो गया जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ थी कि मैं इस तरह के कपड़े पहन के घूम सकता हूँ, कि मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, लोगों के पास एक भी नहीं है। तो मुझे बहुत, मतलब ये इट डस हिट मी अ लॉट, क्योंकि मुझे बाइफर्केशन समझ में नहीं आती। तो मेरे हाथ में जो होता है, कोई मुझसे मांगता तो मैं दे देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है यार मैं अगर कुछ दे सकता हूँ तो ले लो प्लीज़ यार। मतलब वो इसलिए क्योंकि क्योंकि दे दिया है ईश्वर ने, मतलब अब आपको मैं दिया अपना ही है कि हाँ, आपके इतना हाथ सब कुछ से तो जा दे पाए। दिया है। और मैंने एक बचपन में ना एक कोट पढ़ी थी, ये कुछ ऐसी थी, मुझे थोड़ी बहुत याद है कि when God gives you talent, He is actually not giving it to you. He wants to give it via you to Why are people. you? तो अगर He मुझे wants to express his talent हाँ through you थ्रू and यू, yeah, या द correct. यूनिवर्स, द कॉन्शियसनेस, अगर आप थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो कॉन्शियसनेस वांट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वाई यू, और वो अपने आप ही आपको देगी। लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल इज अरिजीत सिंह। मतलब मुझे लगता है कमाल के इंसान है यार, और बताओगे क्या रीज़न हो सकता है कमाल के किस चीज़ का। when he decided to stop? यार मुझे लगता है एक लम्हे के बाद ना, Is it something similar to, let's say, the reinvention phase that या you had? रीइन्वेंशन फेज बहुत, एक लम्हे के बाद आपको आज़ादी भी चाहिए होती है ना, और भी ज़्यादा। फिर आपको लगता है यार अब मैंने, अब ये कला अपना रास्ता अपने आप बनाना चाहती है, अब मैं किसी और के लिए क्या गाऊँ, अब मैं बस ईश्वर के लिए, अपने आप के लिए, या इस ब्रह्मांड के लिए जितना गाना है गा लिया। और अगेन यू हैव टू गो थ्रू इट टू गो बियॉन्ड इट ना। आपने 10-20 साल कर लिया, इतना नेम फेम कॉन्सर्ट्स हासिल कर लिया, अब कब तक ये चलता ही रहेगा, ये ना ख़त्म होने वाला चक्र है। उनकी आँख खुल गई होगी एक टाइम पे, जहाँ पे उनको लगा होगा कि नहीं यार अब हो गया फेम, ना मुझे फेम चाहिए, मैं अपना जियागंज में हूँ, मैं स्कूटी चलाता हूँ। वो इसलिए नहीं, वो लाइक कितनी खूबसूरत रील थी वो, मुझे आई थिंक रफ्तार की थी या किसकी थी, जिन्होंने कहा था कि उस रील में अरिजीत सर के बारे में कि कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, रफ्तार और अरिजीत शायद एक ही कॉन्सर्ट में होंगे, बाहर निकले हैं, उनकी गाड़ी को आने में टाइम लग रहा था, जो भी उनके 2-4 करोड़ की गाड़ी तो होगी उनके पास, आई एम श्योर, आई एम इमेजिनिंग, आजकल तो हर लोगों के पास है तो उनके पास तो होगी, जो 4 करोड़ कॉन्सर्ट के लिए लेते हैं तो 2 करोड़ की गाड़ी तो होगी। गाड़ी आने में टाइम लग रहा है, उन्होंने रिक्शा पकड़ा और निकल गए, जहाँ पे लाखों लोग आपको देख रहे हैं और लाखों लोग मॉब पीछे हैं, उन्होंने रिक्शा पकड़ा निकल गए। तो इतनी सादगी, इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ की पहुँचना ही तो है। पहुंचना ही तो है, ताकि अगर उस आपको कप से आप प्रेजेंट में ना रहो ना, आपके पास होना चाहिए, कार भी वो शाइनी कप वो हो। है, भोग लो उसको। मैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है, इसका मतलब गाड़ी है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। अगर आपको मिल रही है, आपके पास है तो खरीद लो, भोग लो। मैंने ऑडी खरीदी है, मुझे मालूम है, 2012 में 50 लाख रुपए खर्च करके।
खरीदिए रेड कस्टमाइज ब्लैक इंटीरियर्स, दिल्ली वाली हरकतें मैंने पूरी दिल्ली की हैं। वाली मैं तो कह ही रहा हूँ। बोले रेड वहीं से आता है। हाँ, रेड विद ब्लैक कस्टमाइज इंटीरियर, मैंने इंटीरियर्स करवाने के लिए चंडीगढ़ भेजी थी गाड़ी। तो मैंने एब्सोल्युटली। हरकतें की हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा, लेकिन करने के बाद ही उसका इस नहीं की होती तो डिज़ायर रह जाती ना आज भी। तो कर ली, देख लिया, महसूस कर लिया, तो अब नहीं फ़र्क पड़ता मुझे। तो वो फिर उन्होंने किया, तो इसलिए शायद अब उन्होंने बॉम्बे भी देख लिया, अरिजीत सर ने सब चीज़ें देख ली, फेम भी देख लिया, अब वो अपना चले गए। अब वो जो पैसे कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, तो करने देना चाहिए मुझे लगता है। क्यों नहीं? कोई सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ कोई करना चाह रहा है तो मुझे लगता है हमें सपोर्ट करना चाहिए। कौन करता है? हर कोई अपने पैसे के साथ ऐसे चिपक के बैठा हुआ है कि अपनी पुश्तों को खिलाने के लिए, और हमें ये नहीं पता कि हमारी पुश्तें नालायक पैदा होंगी या सुखद पैदा होंगी। कोई कोई समाज के लिए बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं समाज और राष्ट्र की, लेकिन जब एकता और यूनिटी की बात आती है तो हम कह देते हैं कि नहीं यार, तो फिर खोखली बातें करने का पॉइंट ही क्या है यार? कोई कर रहा है, मुझे लगता है सल्यूट है उनको। अच्छे अच्छे नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, नाम तो नहीं लेने चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं और इतनी सादगी से। एक मुझे लगता है अरिजीत सर, रतन टाटा, गिने चुने नाम हैं जो मुझे लगता है इस देश में रहे हैं, जिन्होंने जीवन में अपने से ऊपर कुछ सोचा है, या अपने अहम को साइड में रख के हमारा सारा ध्यान अपने परिवार से ही जुड़ा रहता है। और उसके हम बियॉन्ड नहीं बस जाते उसके हैं। बियॉन्ड हम दे, इंसान की फितरत अपनी चार दीवारी के अंदर है, उसी प्रिजन के अंदर। तो अपने परिवार की जो आपकी ऑब्लिगेशन आप पूरी कर दो। आपके अंदर ग्रीड होगी तो परिवार के अंदर भी ग्रीड होगी, आपके अंदर नहीं होगी तो परिवार के अंदर भी नहीं होगी, क्योंकि आप हायरार्की में सबसे ऊपर होते हो ना परिवार में, यू आर द मैन ऑफ द हाउस। तो अगर आप कर सकते हो इन सब चीज़ों को परे रख के, तो बहुत बड़ी तो अच्छी बड़ी चीज़ उम्दा है, चीज़ है जो करनी कर लो। चाहिए। कर लो। वैसे भी छूट ही जाना है, मेरे पापा ने तो सब छोड़ दिया ना, हाँ, छूट तो गया ही ना। हम सबको ही छोड़ के जाना है। सबको कौन लेके गया है आज तक? माइट एज जिस वेल घर जो के अंदर मैं रह रहा हूँ, वो घर मुझसे पहले भी था, मेरे बाद भी रहेगा। बस आने वाले सराय के लोग बदलते रहते हैं। उससे पहले किसी और का नाम था, बस नेम प्लेट चिपका देते हैं, हमें लगता है मेरा घर है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आपसे पहले 20-50 साल पहले किसी और का नेम प्लेट था, उसने किसी को भेजा, किसी और का नेम प्लेट, फिर किसी और का नेम प्लेट, मेरे बाद 50 नेम प्लेट लगेंगे। मेरा कोई नेम प्लेट में इंटरेस्ट नहीं है। हम सब कहते हैं अपने आप को कि हम सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, बट अल्टीमेटली हम सारे रेंट पे ही आ रहे हैं। सच तो यही है, अगर दिखे और देखना चाहें तो लैंडलॉर्ड तो कहीं से भी नहीं है। कहीं से भी नहीं है। हम मान लेते हैं, हम मान लेते। बट वो तो ऐसा है कि अब मैं इस कप को मान लूँ, सफ़ेद कप को, कि ये डायमंड का कप है और इससे करोड़ रुपये मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो मानने में क्या, मान तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन सच नहीं है वो। सच तो ये नॉर्मल कप है, पानी है, बस ख़त्म कहानी। जब आप अपनी मूवी शेरशाह के बारे में बता रहे थे, यू सेड इट जस्ट हैपेंड, कि यानी ऑफ कोर्स यू आर बीइंग रेडीड, और कभी कभार कुछ रोल्स भी आ जाते हैं। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? शेरशाह एक्सपीरियंस इट यार, वो समय बड़ा कठिन था मेरे लिए। मैं बहुत सारे इमोशनल चीज़ों से गुजर रहा था। ये भी अगेन मैंने कहा ना, समय निर्धारित था। आई वॉज गोइंग थ्रू सम लॉट ऑफ स्ट्रेस विद सर्टन थिंग्स रिगार्डिंग फाइनेंसेस एंड अदर थिंग्स, और उस समय मैं खोज ही रहा था अपने आप को। शेयरिंग ग्रो भी चल रहा था, एक्टिंग भी छोड़ी हुई थी, क्योंकि एक्टिंग छोड़ दी थी तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बढ़ गए थे। 6 साल तक मैंने एक्टिंग नहीं की। पहले आप टेलीविज़न में काम करते हो, रोज़ आपको पैसे मिलते हैं, फिर अपने पैसे, और फिर आप शेयरिंग ग्रो वॉज, मैं उसके कोई पैसे नहीं ले रहा। आई नेवर वांटेड मनी टू बी इन्वॉल्व विद दैट। तो बहुत सारे टॉक शोज़, ये वो, तो खर्चे तो बढ़ ही रहे थे, सेविंग में से जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्टफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी दौरान शेरशाह आ गई। पैसे तो खैर अलग चीज़, जो भी देने थे, बट मुझे ना उसने कारगिल भेज दिया। मतलब बिकॉज शूटिंग वॉज मेंट टू हैपन इन कारगिल, और मैं बहुत इमोशनल टर्मोल से गुजर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और क्योंकि उसने मुझे कारगिल भेज दिया और मैं 15-20 दिन 25 दिन वहीं पर रहा, उसने ना मुझे रिहा कर दिया किसी चीज़ से। क्योंकि मैं पहाड़ों में गया और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, वो समय आर्टिकल 370 चल रहा था, तो फ़ोन भी जैम थे, सब चीज़ें थी। समटाइम्स द यूनिवर्स डिसाइड्स टू, बिकॉज इट सीज योर सफरिंग एंड एवरीथिंग, एंड इट जस्ट पुट्स यू इन द राइट प्लेस। एंड मैं भूल गया सारी चीज़ें, फ़ोन बंद, व्हाट्सएप्स नहीं चल रहे, सोशल मीडिया नहीं चल रहा, सब दोस्ती थे, सारी चीज़ों से दूर। और मैं पहाड़ों के बीच में बिल्कुल सिर्फ शूटिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। और वहाँ पे क्योंकि
व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं है, तो जामिंग चल रही है, म्यूज़िक सेशन चल रहे हैं, कभी शूट कैंसिल हो रही है क्योंकि कुछ डिफेंस की चीज़ें भी चल रही थी, सारी चीज़ें। उस 20-22 दिन में फिर मैंने अपने आप को खोज लिया, मुझे लगता है दोबारा। कभी कभी आप फिर भटक जाते हो, ये भटकन चलती रहती है बीच बीच में, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्टेज पर हो, कभी कभी आसपास की हसल भसल भटका देती है। फिर भटक गए थे, फिर इमोशनली चीज़ें हुई, फिर वो खुद को खोजा, फिर चीज़ें आगे बढ़ी। तो आपको लगता है कि आपका मल्होत्रा मल्होत्रा कनेक्शन काम किया है सिद्धार्थ हो भी सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मुझसे मुझसे भी ज़्यादा मेरी शक्ल काम कर गई, क्योंकि मैं कर कोई और फिल्म रहा था, कुणाल कोहली जी की। वो फिल्म मैं मॉरिशस शूट करने के लिए जा रहा था, एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे मना कर दिया, मेरा इनवॉइस भी जा चुका था इमेजिन, और उन्होंने मना किया। कुणाल सर ने कहा यार आई थिंक यू डोंट फिट द पार्ट, एंड आई सर आप टेस्ट लिया है आपने? कह रहे हैं हाँ टेस्ट लिया, बट आई स्टिल फील यू डोंट फिट द पार्ट, तो हम किसी और तरह का फेस देख रहे हैं। आई सर ओके, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड, आई कॉल्ड जोगी जी एंड जोगी जी सेड कि मेरे पास आ जा। मैं गया और उन्होंने मुझे एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया, उन्होंने कहा पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया। उन्होंने कहा आर्मी की कुछ फिल्म बन रही है। मैंने कहा ओके। मेरे को पता ही नहीं कौन सी फिल्म बन रही है, ना मैंने पूछा, मैंने टेस्ट दिया, मैं चला गया। और उसके 3 महीने बाद उनका कॉल आ गया कि यार ये धर्मा की फिल्म है, शेरशाह, विक्रम सर के ऊपर बन रही है, एंड यू आर प्लेइंग राजीव कपूर। आई सेड वाओ। और कुणाल सर की फिल्म जो उन्होंने बनाई वो बाद में वेब सीरीज़ में तब्दील हुई MX प्लेयर पे, और ये शेरशाह बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। सो इट्स डेस्टिनी, आई सी इट लाइक दैट ओनली, कि मैं कर कुछ और रहा था, किसी ने ऐसे मुझे उठाया, यहाँ से पटक दिया, बेटा यू हैव टू बी हियर। सो आई सेड ओके, लेट मी बी हियर, लेट मी नॉट फाइट एंड रेजिस्ट। सो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में। मैं एक कनेक्शन देख रहा हूँ बिटवीन, जो मुझे महसूस हो रहा है, बिटवीन योर एक्टिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। दोनों अलग हैं ही नहीं, दोनों सेम है। मैं ये तो आपका एक्टिंग इज़ अ पाथ टू स्पिरिचुअलिटी, आपको फील होता है? एक्टिंग इज अ पाथ टू फाइंड माई सेल्फ, ये यही है और कुछ नहीं। अगर मैं क्रिकेटर होता तो भी यही होता। MS धोनी ने भी अपने आप को फाइंड किया थ्रू क्रिकेट, संजू सैमसन भी अपने आप को फाइंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये तो जीवन में, अब जीवन में आया तो रोहन कोई काम कर रहे, काज तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कोई प्लम्बर बनेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बनेगा, लेकिन रास्ता वहीं पर ही है। किसी का आर्ट के थ्रू हो जाता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते सारे आर्टिस्ट इवॉल्व ह्यूमन बींग्स क्रिकेटर्स हैं। मतलब MS धोनी से ज़्यादा इवॉल्व मुझे को दिखता ही नहीं, कि जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आखिरी छक्का मारने के बाद, मतलब वर्ल्ड कप 1983 के बाद 17, 11, 28 साल के बाद आया है। बहुत बड़ी 2011 वर्ल्ड कप वाज द बिगेस्ट। सब लोग रोड पे थे। इससे बड़ा वर्ल्ड कप नहीं था। हम इंडिया के लिए तो बिल्कुल, इंडिया के लिए कुछ भी नहीं, इंडिया के लिए सबसे अच्छा कुछ करेक्ट करेक्ट। उस वर्ल्ड कप में द मोमेंट he hit the 6, he was the man of the match. 95 नॉट आउट, राइट, या 91 नॉट आउट जो भी था, और 95 नॉट आउट था। वो क्या चेज था, क्या चेज था वो। और उसके बाद उसने ट्रॉफी ले जाके सबको दे दी और साइड में खड़ा हो गया। मतलब आपको इस चीज़ के लिए, मतलब ये जिंदगी में वो फोटो है जो जिंदगी भर रहेगा, राइट और रॉन्ग। इतनी बड़ी लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए, इतना बड़ा अहम का बिल्कुल साइड में होना चाहिए, इतनी अच्छी लेवल ऑफ डिटैचमेंट होनी चाहिए। आपका अहम बिल्कुल शून्य पे होना चाहिए, कि आपने ट्रॉफी ले जाके सबको दे दी, ये समझते हुए अपने जहन में कि यार हर बारी कैप्टन को हर चीज़ तो मिलती है ना, टॉस में भी आप ही आगे हो, हर जगह आप ही आगे हो, ये टीम का भी तो हिस्सा है, तो टीम को दे दो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। तो मैं ये कह नहीं सकता कि कला के थ्रू ही है, हर चीज़ के थ्रू है, लेकिन आँख तो आपको ही खोलनी पड़ेगी। कितने लोगों ने किया, इतने सारे कप्तान आए हैं, कितने सारे लोगों ने कितनी ट्रॉफी जीती हैं, एक्सेप्ट MS धोनी। टेल मी वन पर्सन हु हैज नॉट हेल्ड द ट्रॉफी इन द सेंटर, राइट। अभी तो आपका तो रोहित शर्मा भी तो जीते थे ना, आया सेंटर में है ना, सूर्य कुमार यादव भी सेंटर में ना। किसने दिया? बाद में आपने दे दियो साइड में, लेकिन वो तो आता ही नहीं सेंटर में। वो तो पहला, वो तो लेते हैं और वहाँ से वो ज़्यादा प्रेजेंटेशन से लेते हैं ट्रॉफी और आके दे देते हैं, और साइड में बिल्कुल कोने में खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचो कितनी बड़ी लेवल ऑफ अवेयरनेस है। तो ये सारे कर्म काज, काम, प्रोफेशन, दुनिया में आए कुछ करेंगे, इसी से नाम थोड़ा बहुत जो पैसे वैसे चाहिए होते हैं जीवन जीने के लिए, जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं, मिल ही जाता है आपको। बट एट द एंड ऑफ द डे ये रास्ता तो वहीं पे जाएगा, खुद को खोजने का रास्ता है। इसलिए भूलोक पे भेजा जाता है कि जाओ खोजो एंड फाइंड योरसेल्फ। तो अगर मैं सोल की जर्नी जैसे हम सोल कहते की हैं, जर्नी कहते हैं, बस और क्या है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक
व्हाट हैव यू फाउंड अबाउट योरसेल्फ? और क्या ऐसे आपने मेंशन किया था कि कुछ हैं लेसन्स, हो सकता है कुछ रेजिड्यू है, वो क्या चीज़ है जो आपको शायद पता है, जो मुझे लगता है वो लेसन्स आपकी लाइफ में आने चाहिए? यार, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग से ज़्यादा डिलीटिंग है यहाँ पर। फाइंड तो मैंने क्या ही किया, पहले तो बाकी सारी, देखो फाइंडिंग और डिलीटिंग ना नीति नीति में चलती है साथ साथ। नीति नीति, यू अंडरस्टैंड, एलिमिनेशन। हम प्याज होता ना, हमारे यहाँ हिंदी में प्याज कहते हैं, कांदा कह लो यहाँ मुंबई में। प्याज के का जो कोर होता है ना, जो सफ़ेद वाला कोर होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले डिलीट करनी पड़ती है। एलिमिनेशन है सारा का सारा। चाहते हैं हम फाइंड करना है, लेकिन उसका रास्ता एलिमिनेशन से है, इनवर्ड ही है। जो पील आप जो कर रहे हो, सो आपको पील ऑफ करना है बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने कहा ना, माइंड सेंटर, सारी कंडीशनिंग जो भी जाने अनजाने में हो जाती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के किया। अगर मैं हार्ट सेंटर में होता तो हो सकता है मेरी जर्नी कुछ और होती। हार्ट सेंटर में होता, हो सकता है कि मेरी कोई विश ऐसी होती जो माइंड सेंटर की तरफ जाती, तो मैं हार्ट से माइंड जाना पड़ता, मुझे नहीं पता क्या होता। बट आई एम सेइंग फॉर एवरीवन इट्स जस्ट द पीलिंग ऑफ एंड डीकंडीशनिंग your layers and layers, so that whatever is meant to be found will find itself to you. So you don't, of course हमारी seeking तो होती है, but it's नहीं, कोई सुनेगा ये बोलेगा कि पता नहीं हिमांशु इसके बाद पहाड़ों पे ना मॉन्क बन के चले जाए। बहुत बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सुनने में आता है कि मैं पहाड़ों पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं पहाड़ों पे क्यों जाऊंगा? मैंने एक टाइम पे वो भी सोचा है। खैर, आई जस्ट एंड दिस कि यू आर सीकिंग समथिंग, बट वट एवर यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू। तो दोनों साथ में इंटरट्वाइंड है। और जहाँ तक, खैर, फिनिशिंग द कॉन्वर्सेशन फॉर दिस, पहाड़ों की बात है। मैं एक टाइम पे ऐसा भी था जब मुझे लगा कि मैं वाकई में पहाड़ों पे चला जाता हूँ, कुछ समय वहाँ बिताता हूँ, एंड मे बी अगेन द सीकिंग ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ एंड एवरीथिंग। फिर मैंने बहुत कुछ सुना, पढ़ा, देखा, मैं जा नहीं पाया। फिर मुझे समझ में आया कि यार वो भी तो एक भागना ही है ना। अब जब मुझे अगर ये दिख ही गया है कि सब तमाशा ही है, तो तमाशे से भागना ही फिर क्या है? अगर या तो मुझे लगता है कि सब हकीकत है इसलिए मैं भाग रहा हूँ उसके डर से, अगर वाकई में अगर मुझे दिख ही रहा है कि सब नौटंकी ही चल रही है, तो नौटंकी से थोड़ा ना भागते हैं, फिर नौटंकी में तो मज़े करते हैं। तो मैं यहीं पर हूँ, तो जो है यहीं पर है, यहीं पे रह के नौटंकी को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चल पार्टिसिपेट, रहा है एंजॉय चलते कर रहे रहने हो। दो, अपने को क्या टेंशन। अगर किसी चीज़ से गुजरना है, चाहे वो दुख है, चाहे सुख है, चाहे रिजेक्शन है, चाहे डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे अच्छा है, चाहे अचीवमेंट है, तो गुजर जाएंगे। क्या है, ना इसका कोई फ़र्क पड़ना है, ना उसको कोई फ़र्क पड़ना है। कोई कुछ दे दे तो थैंक यू, चले जाए तो थैंक यू। दरवाजे खुले हैं हर बारी, जो आना चाहे थैंक यू, जो जाना चाहे थैंक यू। सेंस ऑफ अचीवमेंट का भी ऐसा ही है। इट केटर्स टू एवरीथिंग। इट केटर्स टू एनी बिग अचीवमेंट। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चीज़ें फिसलन होती है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ईश्वर रूपी हो गए हैं, बट गलतियाँ हो जाती हैं तो फिर सीख लेते हैं। एंड आई ऑल्सो सी लाइफ एज अ कॉन्स्टेंट कंटिन्यूम लर्निंग प्रोसेस। आई डोंट सी इट एज एनी काइंड ऑफ that I have achieved or A this is place the that end. you arrived. हाँ, Yeah, it's not ऐसा a कुछ point, नहीं। it's a continuous कुछ line. भी अराइव नहीं है यहाँ पर। एवरीथिंग इज अराइविंग, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंसिंग, बिकमिंग मीनिंग बीइंग ही है एक तरह से। मतलब हम उसी जर्नी के अंदर, और जर्नी कभी ख़त्म नहीं होते ना यार। मतलब कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि कल मुझे मृत्यु हो जाए? हर इंसान जीवन जीना ही चला जाता है, और लिखते लिखते स्याही कभी ख़त्म हो ही जाएगी अचानक से। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि लिखते लिखते ही आप, मतलब बात करते करते ही मृत्यु हो जाएगी। कलाम साहब की हुई थी ना, बात करते करते मृत्यु हो गई थी। मेरे डैड की भी सोते सोते ही मृत्यु हो गई थी। तो मेरी भी ऐसे करते करते ही मृत्यु हो जाएगी। हर किसी की ऐसी होती, कोई ऐसे तय करके थोड़ा ना आता कि कल मृत्यु होगी। भाई किसी को नहीं पता, कोई बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। किसी की मैंने देखा है, मेरे दोस्त के डैड की हुई थी कि बैठे हैं और ही हैड गॉन टू द लू, केम बैक, सैट ऑन द चेयर एंड डाइड। खत्म। कब वो स्विच कोई खींच लेगा पता नहीं। तो अगर अब लेट्स से हिमांशु इज टॉकिंग टू हिमांशु, हाँ, ये मैं बात करता हूँ हिमांशु टू द बेबी हिमांशु, आई कॉल इट। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर हिमांशु नाउ, अच्छा, फ्यूचर हिमांशु, ओके। 5 years hence. उसका तो मुझे कुछ नहीं पता यार। तो वो अगर आपसे आज बात करेंगे, 5 year hence हिमांशु अगर आपसे बात करते हैं,
तो आप क्या सुनना चाहोगे उनसे? मुझे नहीं पता यार, 5 साल के बाद मैं वो 5 ईयर वाला तो सिस्टम ही नहीं रहा ना अब। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आज के हिमांशु पीछे वाले को क्या सलाह दे वही सकता बता है, बस दो, इतना ही। वही बता दो। Like I have, it's like two Himanshus. One is the baby Himanshu. So this left portion is my baby Himanshu, which is extremely sensitive, extremely emotional. जिसके अंदर मुझे लगता है बहुत डीप रूटेड पे ऐसे हार्ट ऐसे चिपका हुआ है जो जीवन को। और ये एक हिमांशु है जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, जो जिसको थोड़ा अपने आप को समझना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि जीवन में है तो थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी रखनी पड़ती है, रियलिटी रखनी पड़ती है, थोड़ा सा उस तरह का कि हम जीवन जीने में ये परेशान ना हो। तो आई यूजली वेन एवर द डाइकोटमी हैपन्स, सो दिस हैंड टेक्स केयर ऑफ दिस. It's like taking care of the baby Himanshu, who has been extremely sensitive to everything in life that's happening. कभी कभी उसे समझाना पड़ता है, उसके आंसू भी पोंछने पड़ते हैं, उसको महसूस भी करवाना पड़ता है, उसको इनकरेज भी करना पड़ता है. And then this cricketer, this sportsman in me, who has always been, at it, the strong, the structure, the strong boy. You'll be able to do it. Come on, Himan. Yeah, the elder brother takes care of the younger and brother protects him. So that way, so I will just say, पता नहीं पीछे वाले को भी क्या, मैं खुद को ही अगर बोलूँगा तो बस यही है कि just live life यार. मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम काम काम, मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ, ख़त्म ही नहीं होती ये जो जद्दोजहद है. काम से हमने अपने आप को इतना आइडेंटिफाई कर लिया है कि काम ही हमारा, काम से हमें लगता है कि काम है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है. कि यार हिमांशु ये सब चलता ही रहेगा, मेरे से पहले भी बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हैं, मेरे बाद भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप आओगे, आप चले जाओगे, कोई फ़र्क नहीं. दिस इज़ फ्रीडम. तो आप जीवन जियो, फ्रीडम फ्रॉम योर ओन थॉट्स. हर प्रकार से जीवन जियो, जो मनाए करो. हाँ, जो मनाए करो. जीवन जीने का मतलब है जीवन को पूरा होलिस्टिकली जियो, कि ऐसा नहीं कि अपने एक ही में एक बॉक्स में रह गए. दैट्स द वर्ड. डोंट लिव योर लाइफ इन वन बॉक्स. कि इसलिए मैं सब तोड़ देता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट भी किए हैं, तो मुझे लगा कि यार हो गया. अभी भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिमांशु योर टॉक शो वाज सो गुड एंड प्लीज स्टार्ट इट. आजकल तो पीपल कीप डूइंग इट एंड एवरीवनस डूइंग इट. मुझे लगता है हो गया, खत्म. हम उनको बोलेंगे कि वो टॉक शो यहाँ से जी लो आप. हाँ, कहीं इस एपिसोड से जी लो. यहाँ से वहाँ से बात ही बिल्कुल, तो है, और क्या है. बिल्कुल. तो फॉर्म्स बदलते रहते हैं, तो वो भी कर लिया, एक्टिंग भी की है, डांस भी किया, रियलिटी शोज भी कर लिए, फिल्में भी करी, नेटफ्लिक्स का शो भी कर लिया. अभी कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट? एक मैंने बहुत अच्छी फिल्म, शिमित अमीन सर की एक फिल्म बन रही है, उनके लिए मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया है, टी सीरीज़ की है, कार्तिक इज़ देयर. टेस्ट दिया है मैंने अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता था मैंने कर दिया. बाकी ईश्वर जाने और शिमित सर जाने या टी सीरीज़ जाने, अगर वो चाहते हैं और ये ब्रह्मांड चाहेगा तो मैं करूँगा, नहीं होगी तो कुछ और होगा. बिल्कुल. Either this or something. हाँ, मतलब करना ही है काम. तो देखो ज़िंदगी में अब सर नीचे रख के करोगे तो सही ना, और उसमें मज़ा भी आता है. ऐसा कोई मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं है, मुझे तो एक्टिंग करने में मज़ा आता है. ये भी बड़े सालों के बाद मैंने खोजा अपने अंदर कि पहले एक्टिंग करनी थी सिर्फ फेमस होने के लिए, कि एक्टिंग करेंगे, स्टार बनेंगे, फेमस होंगे. अब एक्टिंग करनी है क्योंकि एक्टिंग करने में मज़ा आता है. बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में. शायद धागे भर का ही होगा, लेकिन वो फ़र्क मैंने महसूस किया. तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक्टिंग करूँ या किसी नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट में करूँ या किसी बहुत बड़ी फिल्म में करूँ या रोड पे करूँ. आई लव इट बिकॉज व्हेन आई एम एक्टिंग आई एम इनटू माय ओन स्टेट ऑफ मेडिटेशन. मैं अपनी धुन में हूँ तब मैं. तो मुझे कहीं पे भी करवा लो, मुझे मज़ा आता है. आई एन्जॉय इट. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक जर्नी है. तो एक क्विक 2 मिनट्स का एक रैपिड फायर हो जाए. Yes. ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा. पूछ लो यार. जो आपके माइंड में फर्स्ट चीज़ आएगी, यू कैन वॉमिट इट. 100%. फिल्म या टेलीविजन? फिल्म. क्रिकेट या एक्टिंग? Acting no, but still love cricket a lot. रोमांस रोल या एक्शन रोल? Romance. But people say that I can do action very well, but romance for sure. प्रेम बहुत ही आत्मा से निकलता है. स्क्रिप्ट या डायरेक्टर, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों ही ज़रूरी हैं यार.
एक अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है स्टेज, क्योंकि आप एक्टर हो ना, कोई तो आपको मनूवर भी करेगा ना, बाउंड्रीज में भी रखेगा, वरना आप बहक जाते हो। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक एक्टर जिसको आप एडमायर काफ़ी करते हैं? यार मैं मिस्टर बच्चन को एडमायर करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो तपस्या रही है जीवन की, मुझे लगता है उनसे, और जिस जिस ठहराव से उन्होंने जीवन जिया है, जिस साइलेंस में वो रहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक चुप्पी जो उन्होंने लगा रखी है, किसी को कोई जवाब नहीं फालतू को, और हाथ जोड़ के जो रहना है, इतनी ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ बोलते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को। सेम सेम। उनसे बड़ा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं। इतनी धज्जियां उड़ने के बाद 200 करोड़ का लोन कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ा ना यार, मतलब मेरे ऊपर एक टाइम लोन रहा है, नींदें उड़ जाती हैं यार। 200 करोड़ मतलब, और आपके पास कुछ भी नहीं है, और वहां से अब इस लेवल पे आना फिनोमिनल। मतलब No, उनके लिए very तो हाथ जोड़ well के said, salute है। well said. And sorry, just a small detour where मिस्टर बच्चन के मुंह की कही हुई बात, और वो अनिल अंबानी जब उनको 200 करोड़ लोन दे रहे थे, मतलब वो दे रहे थे, उनका लोन चुका रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू अनिल अंबानी, एंड उन्होंने अपने फादर को कहा, धीरू भाई अंबानी को, कि इनके पास 200 करोड़ का कुछ लोन है, उतार देते हैं, ही इज इनटू प्रेशर एंड एवरीथिंग। ही वांटेड टू गिव दैट 200 करोड़, ही डिड नॉट टेक इट, एंड ही सेड, नहीं यार मैं करूँगा, थैंक यू, यू कंसिडर मी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 200 करोड़ मतलब यार, सॉरी, नींदें हराम हो जाए यार इतने, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। बहुत बड़ी तपस्या। सो उनसे बड़ा तो कोई नहीं। वेल सेड। एक ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं? हाँ, ड्रीम रोल यार, इम्तियाज़ अली की कोई भी फिल्म में रोमांस करवा लो, आई वुड लव टू, बिकॉज उनकी, मुझे लगता है कि उनकी संगत में रह के मैं खुद को और खोज पाऊंगा, क्योंकि उनका है रूमी वाला थोड़ा। अच्छा है? हाँ है, उनकी संगत है बड़ी ऐसी कमाल की, रूमी वाली है, काफ़ी सूफियाना है, और मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे बीइंग से रेजोनेट करती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कल का मुझे पता नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है उनकी संगत में भी वो हीर रांझा बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो ना जहाँ पे खुद को फना करने वाला। आप इंटेंशन डाल दिया, अपने बीज डाल दिया, ठीक है, कोई नहीं, ईश्वर तय करेगा, बाकी ईश्वर तय करेगा, तो कुछ और होगा। करेक्ट। मतलब उनकी संगत में रह के sometimes just being in the presence of a master you find yourself. Yeah, very true. नहीं, और कुछ नहीं। Very true. One acting tip which you feel has really helped you? किताब ही थी यार, प्रेजेंट मोमेंट। पूरी एक्टिंग प्रेजेंट मोमेंट में है। अगर हम टेक्निक की बात करें तो, हाँ? अगर हम टेक्निक की बात करें, एक्टिंग एज अ टेक्निक, उसमें क्या एनी एडवाइस दैट? ये बहुत सारी टेक्निक्स मैंने इस्तेमाल की हैं, वर्कशॉप्स भी की हैं। हाँ, बट एक पॉइंट के बाद ना ऐसा होता है रोहन, सारी चीज़ें ना एसिमुलेट हो जाती हैं आपके अंदर, तो आप बाइफरगेट नहीं कर पाते। तो मैं अगर स्वयं को कहूँगा तो इतना ही कहूँगा कि कोशिश मत करो कुछ बनने की, कोशिश मत करो किसी किरदार को बनने की। जस्ट बी वेरी, आई थिंक अगर एक वर्ड में कहूँ तो जस्ट बी वेरी ट्रूथफुल, ऑथेंटिक, वेरी वेरी ट्रूथफुल। तो आई थिंक अगर ये शब्द है, चलो इतना ही करते हैं, बड़ा सिंपल। वन एक्टिंग टिप टू माई सेल्फ, टू एनी वन, जस्ट बी वेरी ट्रूथफुल। भूल जाओ बाकी सारी चीज़ें, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, जस्ट बी वेरी वेरी ट्रूथफुल। वो ट्रूथ और आपका बीइंग दोनों साथ में ही चलते हैं। आप जिंदगी में ट्रूथफुल नहीं हो और एक्टिंग में ट्रूथफुल हो जाओगे, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि रास्ता वही है, इंस्ट्रूमेंट यही है ना, बॉडी इंस्ट्रूमेंट यही है। तो आई टेल माई सेल्फ, इसलिए सच सबसे ऊपर। ब्यूटीफुल। जैसे लोग हमें सुन रहे हैं और सुनेंगे भी आगे फ्यूचर में, आप कैसे चाहोगे कि हिमांशु की जर्नी शुड बी रिमेंबर्ड एज? अरे नहीं, मत याद ही मत रखो मुझे, बस बहुत हो गया याद ही रखने। नहीं, खत्म हो गया यार। हिमांशु जैसे बतेरे आएंगे बतेरे चले जाएंगे। I don't care about any term called Himanshu, and I don't want to anymore. तो ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल करते हैं। नहीं, ये आने दो क्वेश्चन, देखने तो लोगों नहीं, को। इससे और अच्छा क्वेश्चन मुझे आया। नहीं, इसका एक रीज़न है, शायद कोई मेरे जैसा कुछ सोच रहा होगा तो उसे समझ में आएगी कि ये भी अहम का हिस्सा है बहुत। तो फिर एक बोनस क्वेश्चन ऐड कर देते हैं टू एंड इट, कि अगर कोई अपनी जर्नी शुरुआत कर रहा है एक्टिंग की, अगर वो दिल्ली से शुरुआत कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? मैं उसको ये कहूँगा कि मेरी एक दोस्त है, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ। मेरी एक दोस्त है, जब वो 17 साल की थी तो मुझे मिली थी मेरे डैड की डिमाइस पे। मोनिका चौधरी नाम है उसका।
She met me. I was working out in the gym in Delhi. I had done fair bit of television shows before that. This is 2013 I'm talking about. तो मुझे जिम में मिली. And she got fascinated by me because, of course, एक actor, Bombay से. Bombay, you the know, charm is there, fascination is there. 17, 18, you get charm. Yes. तो उसने मेरे से मुलाकात की, हम लोग बैठे, we had conversations, and she said, मुझे famous होना. I said, okay, क्योंकि मुझे भी होना था, I could understand. तो she said, मुझे television shows करने हैं, and all those things. I said, fantastic. तो I said, एक काम करते हैं मोनिका, मैं तो कुछ टाइम के बाद फिर मैं I think बॉम्बे चला गया था या जा रहा था. I told, थोड़ी तैयारी कर ले, you know, बिना उसके नहीं हो पाएगा. तो मैंने बोला और उसने, मैं चला गया बॉम्बे. ये 6-8 महीने साल के बाद की बात है, डैड के डिमाइस की, जब वो बिजनेस का चल रहा था. मैं आना जाना मेरा चल रहा था बॉम्बे दिल्ली थोड़ा बीच में. और उसने ना, कौन सा थिएटर ग्रुप है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने थिएटर ग्रुप दिल्ली में ज्वाइन कर लिया. शी वॉज इन लक्ष्मीबाई कॉलेज. उसने ज्वाइन कर लिया और उसने 3 साल वो थिएटर किया. वाह. ठीक है, मुझे नहीं पता उसकी, मैं तो बॉम्बे उसके 1-1.5 साल के बाद 3 years is a lot. कभी मैसेज पे बात हुई और उसने पढ़ाना शुरू किया थिएटर बच्चों को. 1-1.5 साल वो भी किया स्कूल के अंदर, जैसे नौकरी के लिए, सारी चीज़ों के लिए. फिर अचानक से उसने सोचा, कई सालों के बाद बॉम्बे आती हूँ. वो मुंबई आई, उसने ऑडिशंस दिए. अपहरण करके एक सीरीज़ है बालाजी ऑल्ट की. शी गॉट द सीरीज़ एंड शी स्टार्टेड वर्किंग इन वेब. नाउ शी इज डूइंग फिल्म्स. शी आल्सो वाज इन दिस फिल्म कॉल्ड रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की कौन सी फिल्म आई थी, लव रंजन ने डायरेक्ट की थी, तू झूठी मैं मक्कार. उसमें वो बस्सी के ऑपोजिट वही लड़की है. ओह वाओ. इमेजिन. तो मैं बस वही कहूँगा कि रास्ता तो ईश्वर तय करेगा, मैं कौन होता हूँ, लेकिन तैयारी तो आपको करनी है. तो मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि आप तैयारी करो, और तैयारी करने के बाद अपने कोकून में भी नहीं अटकना होता है. तैयारी करने के बाद बड़े समुद्र में छलांग भी लगानी है. कुछ लोग तैयारी करने के बाद वहीं के राजा बन जाते हैं और उन्हें लगता है यही जीवन है. जीवन इतना बड़ा नहीं है, जीवन उससे भी बड़ा समुद्र है. आप डरो मत, थोड़ी सी हिम्मत रखो और बड़े समुद्र में कूदी लगा दो, फिर देखेंगे आगे के आगे. थोड़ा ईश्वर पे भी छोड़ दो. तो गाइस, थोड़ा ईश्वर पे भी छोड़ दो. थैंक यू सो मच हिमांशु. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड thank you for coming to Beyond Billables. Thank you for inviting me. I'm glad. Thank you.